Good morning, everyone. I'm Dr. Abhilasha, and today this is our first class of semester 6, and the course is Business Strategies, and today we'll be covering our first unit, which is Introduction to Business Policy and Strategy. So let me just quickly introduce myself. I'm Dr. Abhilasha. I'm a faculty at SOL. Generally, I teach MBA students, but considering strategies is my core area, I thought why not to teach strategies to semester 6 students as well. I have done my PhD from IIT Delhi. I have done MBA from IIM Raipur. Prior to that, I have an engineering background as well. So when you mentioned science, I could resonate. Okay. So before we start this class in a very structured way that we'll be covering what all units are there, I would like to know that what do you understand by the term business, because this particular course comprises of business strategies. So let's dissect business first. What do you understand by business? What is your understanding so far? Fulfill the demand of customer in exchange of money. Okay, and? So see, what we are trying to do is we will try to break it down so that it is understandable. So there is no right or a wrong answer. It's a free flowing class. I want it to be very interactive. जो भी आपके according is the definition of business, or whatever your understanding is, we will stick to that. Alright, so as I had already mentioned, there is no right or wrong answer. So please feel free to answer and whatever comes to your mind. So what do you understand by business? आप तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे ही पता होना चाहिए. हम डेली बेसिस पे वी गो बाय समथिंग और वी यूज सम सर्विसेज. फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एयरटेल जियो कुछ तो यूज़ कर रहे होगे. दीज आर सर्टेन सर्विसेज, राइट? सो दीज आर सम providers. For them it's a business. You are their consumers, right? So what do you understand by business? You pay something for in exchange of and एक बिजनेस है आपका. क्या क्या उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या करोगे उस बिजनेस में. मानो कल को आप अपना एक डिजिटल या ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या होगा उसमें, क्या करोगे, व्हाट विल बी प्रोवाइडिंग? विल बी प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विस, राइट? गुड्स, consumers, right? Goods and services, consumers. This is one side. And what is the other side? You will have your employee base. उनको सैलरी दोगे आप, एक स्ट्रक्चर होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी. प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट लाइक एनी अदर स्टार्टअप. जैसे startups like Flipkart and Snapdeal, they started in one flat in Bangalore and we all know where they are there now. छोटी 2 लोगों की टीम से 20,000 टीम, right? But what do you understand by strategy? So before we get into it, these are certain topics that we'll be covering. Nature and importance of business policy and strategy that we've already started discussing. Then introduction to strategic management process, then what is the characteristic of strategic management decisions, and what is the company's vision and mission, right? So what do you understand by strategy to begin with? What is strategy? What do you understand by strategy? Planning. Okay, we'll come back to that. And Beta, can we just stop using our phones, please? It's very distracting. You're hardly 5 students. I can see right there. It's very distracting. Yeah, please don't. Talk to me. I talk well. Okay. So what do you understand by strategy? कुछ भी, जो भी डेफिनेशन आपके दिमाग में आती है. पार्टी करने जाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लान करते हो, ठीक है. We'll get back to that. And and बताओ. ठीक है. और मोटिव होना चाहिए. करेक्ट. एंड सी थिंक, अभी अगर आप लोग कुछ फर्दर डिग्री नहीं करने का सोच रहे हो आफ्टर दिस एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर फॉर्मल ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, राइट? सो जस्ट ब्रेनस्टॉर्म व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड. टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रैटेजी? या एज यू राइटली सेड, सम मोटिव. एंड पर्सनल, हम लोग माइक्रो से मैक्रो जाएंगे. पर्सनली हम क्या स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, हम बिजनेस के अकॉर्डिंग वी विल थिंक, वी विल गो देयर, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट. हम क्या सोचते हैं उसके बारे में. हाँ,
ठीक है, ठीक है, करेक्ट, टू एग्जीक्यूट समथिंग, टू कॉन्डक्ट समथिंग, कोई प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना। आप बताएं। सर्टन गोल के लिए। तो अभी हमने क्या 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 सुना इसमें? गोल है, मोटिव है, हमें प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। हम उसमें वापस आएंगे, व्हाट ऑल डिस्कशन वी जस्ट हैड, बट इज स्ट्रैटेजी समथिंग न्यू? ये तो कब से स्टार्ट हो रही है ना? इट इज़ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ चाणक्य, इट इज़ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ Sun Tzu. Who Sun Tzu? So you know there's this book, The Art of War. In that it is mentioned. So what is strategy? So this word comes from a Greek word which is strategos. It means generalship. Army को lead करने से ये start हुआ. We all know that where we have reached now, over the ages and you know after epochs and so many years, millions of years, is like कोई वॉर्स हो रहे हैं, उसमें स्ट्रैटेजी हो रही है, पीपल आर ट्राइंग टू गेट समबडीज लैंड, ट्राइंग टू हैव अ अपमैनशिप ओवर द, एक आर्मी है उसको लीड करने, इट इज़ फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज़ कम. सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट जो मिलिट्री के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दिस इज़ वन थिंग वेयर स्ट्रैटेजी हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम. ठीक है, जस्ट टू हैव अ बिग आइडिया. सेकेंड, अर्थशास्त्र के बारे में आपने पता होगा, चाणक्य, इट्स अ बुक बाय चाणक्य, कौटिल्य. जनरली लोगों को लगता है दैट अर्थशास्त्र इज अबाउट इकोनॉमिक्स, बट इट इज़ अबाउट हैविंग अ स्टेटमेंटशिप एंड अबाउट हाउ टू रन अ स्टेट. एक रूलर को, एक राजा को क्या करना चाहिए अपनी स्टेट को अच्छे से रन करने के लिए. दूसरा कि क्या क्या रूल्स हैं जो सब लोगों के लिए, आपके सिटीजन्स जो हैं उनके लिए एग्जीक्यूट कर सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटायर यू नो नेशन दैट वन इज टेकिंग केयर ऑफ एंड द सिविलाइजेशन पर से. Not just that, you know, even in the Greek times, Plato and Aristotle, these are the philosophers. अगर आपने इनका कभी नाम सुना हो, even they have also mentioned about how to run a state. And there are various, you know, other examples. For example, Napoleon हुआ, या there are so many rulers. And in the current date and time, come. And current date and time में क्या है? जैसे now, how the country is run. There are strategies. There are people who are there in the core strategy team. For example, our cabinet ministers. They formulate the strategies according to it. जो भी country में कोई schemes आती हैं, policies आती हैं, they are run according to that, right? So what all we have discussed, goals. हमारा एक particular goal होना चाहिए when we talk about strategy. Then operations, अगर हमने कोई एक strategy सोची है तो उसको कैसे execute करेंगे, what all things would be required in that. We have to take care of how our organization is growing financially, what is the timeline in which we want to achieve that particular goal, what would be our mission, what would be our vision, and so on and so forth. ये जो सब चीज़ें अभी शायद आपको you might find it a little hard to understand, but during this course हम इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा क्लैरिटी से बात करेंगे. अभी अगर कुछ कन्फ्यूजन है, we can take it up after the class, alright? But what are the key characteristics of strategy? तो जैसे आपने बोला प्लानिंग, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन थोड़ा डिटेल में करेंगे, बिकॉज जनरली होता ये है कि वी गेट कन्फ्यूज्ड दैट प्लानिंग इज स्ट्रैटेजी. प्लानिंग इज प्रॉब्ली वन पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी जिस पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है. बट व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक गोल होना चाहिए. जो भी हमें अचीव करना है उसका एक गोल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ सर्टन job scenario, there is a goal that you have in your mind, and accordingly you will have a strategy that this is how I'm going to go about it. If it is requirement of some sort of a coaching or certain time that you want to devote to it, you will formulate your strategy, right? Then it has to be dynamic and flexible as well. Why dynamic? बताओ क्यों dynamic होना चाहिए, flexible क्यों नहीं चाहिए आपकी strategy?
एग्जैक्टली मानो अभी कुछ एक नया आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में तो सब ठीक है, बट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, फिर कि अभी एकदम आ गया कि आप भाई इतने काम से, जैसे अभी ग्राफ लगता है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनी है, उन्हें बोल देते हैं कि आप अभी काम नहीं करेंगे, इतने महीने या 1 महीना या 2 हफ्ता 2 महीने आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा कोई बिल्डिंग बन रही है सब रुक जाता है। तो क्या पता आपके जो मैनेजर्स हैं या जो आपके इंजीनियर्स हैं उन्होंने सोचा हो कि इतने टाइम तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट का काम, इतने टाइम तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे, मगर अगर एक्सटर्नली कोई चीज़ आती है तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, राइट? सो वी कैन नॉट हैव अ रिजिड स्ट्रैटेजी, सो वी नीड टू हैव सर्टन विंडो इन आर स्ट्रैटेजी सो दैट अगर कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं तो वी आर रेडी टू डील विद इट। ये तो हो गई हमारी कुछ पॉलिसी में कुछ चेंज आ गए, कोई गवर्नमेंट की कुछ चेंजेस आ गए। कभी ये भी तो हो सकता है कि इंटरनली आपके जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल भी चले गए, वो बोल रहे हम नहीं कर रहे काम भाई, उस केस में भी क्या होगा? यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उसमें आप और क्या चेंज करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर स्ट्रैटेजी, राइट? देन व्हाट इज द अदर थिंग? रिसोर्स एलोकेशन। कैसे रिसोर्सेज? व्हाट आर द रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन? मशीनरी, एम्प्लॉयज, यस, बताएं। कैपिटल, यस, हाँ, right, and but what let's understand, so there are two kind of resources. One is tangible resource, one is intangible resource, right? Tangible resource कैसे हो गए आपके? जैसे मशीनरी हो गया, अगर एक ऑफिस है, एक आईटी कंपनी है, तो जो कंप्यूटर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो डेस्क है, ये हो गए आपके सारे tangible resource। और intangible resources क्या हुए? गुडविल एंड जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, जो द ग्रे मैटर दैट दे हैव, या अगर आपने ऐसी कोई बिजनेस प्रोसेस बनाया है या कोई पेटेंट है आपके पास या कोई ट्रेडमार्क है, कंपनी का लोगो है, कोई टैग लाइन है, दीज आर ऑल योर इंटैंजिबल रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजी में जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो कि कैसे हम उनको प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं और आपकी एक टेक कंपनी है, सो यू वुड वांट कि आपके एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम कोडर्स हों, राइट? एंड एज अ मैनेजर यू हैव टू इंश्योर कि जितने एम्प्लॉय जहाँ ज़रूरत हैं उतने ही हमने डिप्लॉय करें। HR में probably we don't need that much, so that we have to save on it and we need to ensure that we have more coders in our organization, right? Then what is competitive advantage? You can read. What is competitive advantage? Huh? What do you understand by competitive advantage? Competitive advantage is something that you have an edge over your competitors. कि आप ऐसा क्या एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या आप ऐसा अपने प्रोसेस में कुछ चेंज कर रहे हैं, या आपके पास एम्प्लॉयज़ ऐसे जिनकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है दूसरों के मुकाबले, क्या है ऐसी चीज़ जो आपको दूसरों से अलग करती है? फॉर एग्जांपल एप्पल का क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? यस। व्हाट्सएप का सिक्योरिटी। क्या लिखा आता है हर मैसेज में? End-to-end encrypted. So this is some sort of a competitive advantage that you have over your competitors. Apple क्या बोलता है? सिक्योर। वो अपना फ़ोन, अपने कोई भी गैजेट को इसी पे ही बेचता है। तो इनोवेशन तो दे आर हैविंग द मास्टर इन इनोवेशन। सेकेंड कि ये सब कुछ आपका फुल्ली सिक्योर है, राइट? सो these are certain things that give competitive advantage to the competitor. Last but not the least, what is the integration? What is integration? Read it. Integration देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना देयर इज अ कॉर्पोरेट लेवल, देयर इज अ बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल पे कौन लोग होते हैं आपके? द CEOs है टॉप लेवल। बिजनेस लेवल पे उसके फर्दर। फंक्शनल पे जो काम करेंगे, जो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? So when someone is making a strategy, it has to be in alignment to all the three levels, ठीक है?
So what is the importance of strategy? A, we get a roadmap right, that this is the roadmap, this is how we have to go along, this is how, beta I will give you all this, don't worry, ये आप लोगों के लिए ही है, I will not keep it to myself, but still if you want to take a picture you may, but why bother, I'll give you a HD quality presentation, है ना? I will share, मैंने पहले भी share करी है, I was teaching your first semester students, I've shared, I'll share, don't worry. So you're saying, so क्या है strategy से? What is the importance of strategy? बताओ. We get a roadmap, how to go about it, certainly. Then if there are certain challenges that we may anticipate, we can work through it. For instance, we've already seen, how COVID changed everything. उसके बाद क्या strategy बनी? अगर हम एक workforce के बारे में बात करें कि work from anywhere हो गया, not just home, anywhere. ऑनलाइन. इन्फोसिस जैसी कंपनी क्या बोलती है कि आप महीने में बस कुछ दिन ऑफिस आ जाओ, यू कैन पीसफुली वर्क फ्रॉम योर होम. वी जस्ट वांट यू कि आप 8 दिन या कुछ घंटे या कुछ ऐसे दिन होते हैं कि आप आओ. दे आर ओके विद इट. उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ? अब मान लीजिए इन्फोसिस के 1000 एम्प्लॉई हैं, उनको बिठाने के लिए जगह तो चाहिए, अब ज़रूरत ही नहीं है. सो दे हैव कट डाउन ऑन द कॉस्ट देयर. अब वो ऐसे करते हैं कि भाई 250 लोगों की जगह है या 300 लोगों की जगह है, अगर आपको जाना है आप अपनी सीट बुक करो, जाने से पहले सीट होगी तो ही आप प्रीमाइस में भी एंटर कर पाओगे. सो यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, अगर अब मुझे ऑफिस जाना है अपने वो आवर्स कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे अपनी एक सीट बुक करनी होगी, तो ही मैं एंटर कर पाऊँगी इवन इन द प्रीमाइसेस. उससे क्या हो रहा है? दे हैव सेव्ड सो मच, राइट. जहाँ 1000 सीट की कॉस्ट तो हर सीट से अटैच्ड है ना. अभी 1000 लोग तो नहीं आ रहे हैं, 300 में से कौन कब आता है किसको पता है. सो नाउ दे आर सेविंग ऑन दैट कॉस्ट, राइट. देन थर्ड, अलाइंस ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैसे? कि आज से 5 साल बाद वेयर डू वी सी आवरसेल्व्स, क्या करेंगे. मान लीजिए अभी जियो, वी ऑल यूज जियो का एक एक्सटर्नल नंबर वी ऑल हैव. वॉज इट समथिंग कि एक दिन में हो गया था? इन्होंने हाउ डिड दे स्टार्ट? पहले गए फ्री, सब फ्री. दैट वॉज द पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, सो दैट वी गेट हुक टू इट. एंड इट वॉज ऑल्सो द टेस्टिंग फेज, राइट. दे वर ऑल्सो टेस्टिंग कि हम लोग कैसे उसको एज अ कस्टमर हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या बहुत ही सीमलेस यूसेज है, क्या है. अब क्या है? बढ़ गए पैसे. हाँ, जैसे उनके वो सेलिब्रेशंस हुए, दे हैव इंक्रीज द कॉस्ट. क्या ऐसा किसी ने करा कि अब पैसे बढ़ गए हैं तो छोड़ो अब नहीं यूज़ कर रहे हैं? ओके ग्रेट. क्योंकि सबके पास फ़ोन में एक एक्स्ट्रा नंबर जियो करके सेव होगा. मान लो आपका कोई फ्रेंड है राहुल, तो राहुल जो एयरटेल नोकिया यूज़ कर रहा है तो ठीक है, राहुल जियो, मम्मी जियो, Papa Jiyo. The extra number that we are using, the secondary number that we are using, in most cases, अभी नहीं, मुझे नहीं पता, I don't know many people who have started using Jio as a primary number. Secondary 2 SIM है तो दूसरा नंबर Jio यूज़ कर रहे हैं. Anyways, coming back to the point, and to ensure sustainability. What is sustainability? कि आपका जो बिजनेस है ऐसा हो कि लॉन्ग रन में चल सके. ठीक है. नोकिया पता है सबको? कहाँ है नोकिया? गायब है ना. दे डूइंग समथिंग एल्स नाउ, दे आर नो लॉन्गर इन द मोबाइल. ठीक है, छोटा मोटा बनाते हैं वो, दे आर देयर, बट उनका बिल्कुल दे हैव चेंज देयर डोमेन. डिड दे फॉलो दिस थिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? नो, दे डिड नॉट. सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस कि उनका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल हो. क्या किया? जब एप्पल और ये सब आए, दे वर स्टिल वेरी कॉम्प्लिसेंट कि हाँ ठीक है, हमारा तो चल रहा है कीपैड, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दे डिड नॉट मैच अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. एंड एक टाइम पर नोकिया यूज्ड टू बी ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट्स. बेस्ट फ़ोन, टॉप फ़ोन सारे नोकिया के होते थे. एंड नाउ दे आर नोवेयर. ऐसे ही कितनों को पता है कि पहले, आई मीन यू पीपल आर क्वाइट यंग, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, कि पहले कैमरा में रोल्स आते थे,
24 फ़ोटो खींच सकते थे उनसे, कोडैक और इनके आते थे। आप कोई यूज़ कर रहा है कोडैक? नो, वी यूज़ आवर फोन्स, राइट? वी जस्ट क्लिक अ पिक्चर और उसको हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं या फेसबुक पे डाल देते हैं। कोई प्रिंट ले रहा है? वेरी फ्यू दैट हु आर टेकिंग द प्रिंट आउट्स, वेरी फ्यू। बट देयर वाज अ टाइम जब कोडैक के रोल्स आते थे एंड दे डिडंट सी दिस कमिंग। उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया टू गेट इनटू द डिजिटल डोमेन, हाउएवर they failed to see that there is this new era which would come कि मोबाइल के अंदर ही कैमरा आने लगेगा। पहले आई रिमेंबर बैक इन द डे जब ये कोडैक और ये बंद हुए थे तो सोनी के कैमराज आते थे, फिर देर DSLRs आर ऑल, अभी भी हैं ही DSLRs तो, लेकिन अभी तो लोग इतने फ़ोन से इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, डूइंग ऑल द सेटिंग एंड एवरीथिंग, दैट इवन DSLRs अभी थोड़ा पास से हो रहा है, वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह में यूज़ होता है, बट देन अदरवाइज इन डे टू डे नोबडी इज यूजिंग DSLR। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कि प्रोफेशनल लोग DSLR कैमराज यूज़ कर रहे हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि इफ यू शुड एंटिसिपेट इफ देयर इज समथिंग दैट माइट कम, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? As I mentioned earlier, but it's strategy planning. Planning is one part of the strategy, but strategy is a completely different paradigm. It is about having a long-term objective. Planning could be what we are doing today. Strategy is a long-term horizon. कोई example दो ऐसा? Example दो? long-term strategy planning on a day-to-day level. For example, कोई एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, आपके एज ग्रुप के लिए एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है क्योंकि यही करना ही है ऑब्वियसली, कि मुझे मान लो CGL क्लियर करना है या कोई ऐसा CAT क्लियर करना है, वो तो स्ट्रैटेजी हो गई, भाई हम ये करेंगे, हम ये बुक लाएंगे अरुण शर्मा की, हम ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, करियर लॉन्चर ज्वाइन कर लेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक्स देंगे, वो सब। बट आज क्या कर रहे हैं? आज क्या पढ़ेंगे? आज DI पढ़ेंगे, आज क्वांट पढ़ेंगे, आज क्या कर रहे हैं? या जो भी है, सो दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। बट स्ट्रैटेजी हैज़ अ लॉट मोर टू डू विद अपने रिसोर्सेज कैसे डिप्लॉय करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So here on your screens you can see what is the definition. A simple definition is it involves formulating and implementing, executing, and when we talk about planning, it focuses on the details of the steps that we will gonna follow, right? Then what is the focus of strategy? The focus of strategy is why we are doing it and what are we going to do. But when we talk about planning, it is how are we going to do what we are planning or what we have thought about to do, right? Then what it has a broader scope, it is more dynamic, but planning is little narrowed down कि आज क्या करने वाले हो आप। जैसे सबको है कि one day we will do this, but for that one day to come, what are you doing today? वो 3 Idiots में डायलॉग है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागना है? फिर काबिलियत के पीछे, खुद को काबिल बनाओ, सक्सेस वुड कम, बट कि वो सक्सेस के लिए पहले रेडी तो करो खुद को अपने आप को इतना काबिल तो बनाओ कि वन डे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक इट अप। इट शुड नॉट बी अदर वे अराउंड कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम उस पर काम करेंगे, नहीं, अभी से काम करो, अपॉर्चुनिटी वुड कम। When you're ready, the opportunity would come itself, right? As I mentioned earlier, time frame strategy ka it's a longer time frame, but planning ka it is shorter or a medium term planning, right? Last but not the least, strategy has to be flexible, it needs to be dynamic, but when we talk about planning, it has to be relatively rigid. ये नहीं होना चाहिए सुबह हमने प्लान बनाया और शाम तक कोई रिजिडिटी नहीं, कुछ नहीं, हाँ ठीक है चलो थोड़ा घूम ही आते हैं या थोड़ा कुछ और ही कर लेते हैं। आज आप क्या करोगे
वो इम्पॉर्टेंट है, दैट सो दैट यू नो व्हेन यू आर स्लीपिंग एट नाइट यू शुड नो कि चलो ठीक है आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर ली है। कभी ऐसा हुआ है किसी को कि रात को नींद नहीं आ रही कि यार आज तो पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया? हुआ है कि यार क्या सोचा था, करा ही नहीं, और करने के बाद यार वो फ्रेंड ने बुलाया था मैं नहीं जाता तो ठीक रहता, है ना? हाँ नहीं, बिकॉज यार एज ग्रुप में सच ना उसी चीज़ को तो ओवरकम करना है कि व्हेन वी आर स्लीपिंग एट नाइट सो वी शुड हैव कि यार आज कुछ तो करा है प्रोडक्टिव, एटलीस्ट वन थिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो कुछ करा है, कुछ एक किताब पढ़ ली, एक पेज ही पढ़ लिया, कुछ तो कर लिया। अदरवाइज फिर यही है कि जैसे आपने बोला कि वो फिर इट कीप्स रिपीटिंग ऑन अ डेली बेसिस, अगला दिन आता है फिर वही, फिर आता है फिर वही। एनीवेज, so as I mentioned, what is the nature and importance of business policy and strategy? So, you know, when we talk about a business policy, क्यों ज़रूरी है ये? क्यों एक ऐसे एक पॉलिसी होनी चाहिए बिजनेस की? क्या होगा उससे? एक स्ट्रैटेजी एक बिजनेस की प्रॉपर क्या होगा? हाउ विल इट हेल्प यू? मानो आप एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, उस कंपनी में प्रॉपर पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज जो भी होनी है दे आर देयर ऑन पॉइंट। हाउ आर यू बेनिफिटेड? टेल मी, एज एन एम्प्लॉय हाउ आर यू बेनिफिटेड? कंपनी पे ट्रस्ट होगा, राइट। हमें पता होगा हमें क्या करना है। इन सब चीज़ों से क्या होगा? यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, you will feel secure. So when we talk about business policies and strategies, the first and foremost thing is that it suggests a win-win for everyone. चाहे आप employees हैं उनके लिए या एक कस्टमर है उनके लिए। मानो हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं मिंत्रा से, ठीक है, आप लोग मान लो 2 लोग आप एम्प्लॉई हो और 3 लोग कस्टमर्स हो। अगर पूरी एक स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, तो यू नो कि कल भी हम ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस वहीं मिलेगा, है ना? ये नहीं कि वो लक्ष्मी चिट फंड वो मूवी में था ना कि अगले दिन गए ऑफिस ही नहीं है। और मानो आप लोगों ने कुछ ऑर्डर करा है, ठीक नहीं आया, साइज इशू है, तो एक कंपनी है जिसको आप रिटर्न, मानो कि आज ले लिया, कल जब उनका वेबसाइट खोलते हो तो एरर 404 आ रहा है ही नहीं। एंड यू नो दीज थिंग्स हैपन, होती है ना। मैं तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल रही हूँ जो नहीं होती है ना, होता है, बिल्कुल होता है, राइट? कि आपने जनरली इंस्टाग्राम से कुछ ऑर्डर करा, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो इतना सस्ता कुछ दे रहे हैं एंड एज कस्टमर है कि वाओ ये तो बहुत सही प्राइस में मिल रहा है, एंड व्हाट हैपेंस इज आपके पैसे भी चले जाते हैं और ठीक है। तो बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो दैट यू फील सिक्योर एज एन एम्प्लॉय एज अ कस्टमर एंड देयर इज विन विन फॉर एवरीवन। क्योंकि जितनी भी चीज़ें स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म है कि वी नो कि अभी हमें यहाँ से कहाँ जाना है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि ब्लिंकिट पे अभी उन्होंने एक ऑप्शन देना शुरू करा है दैट वी कैन कॉल फॉर एन एम्बुलेंस? पता है ना ये चीज़? रिसेंटली सोचा होगा, ओवरनाइट तो नहीं सोचा होगा कि चलो आज से कर लेते हैं। सो दे हैव थॉट थ्रू इट। बहुत सारी चीज़ें कंपनी सोचती हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाता। फॉर एग्जाम्पल डंजो का पहले क्या काम था? सामान, मानो आपको मुझे कुछ भिजवाना है, कुछ भी कोई बुक है या ऐसे है, तो पहले होता था कुरियर सर्विस यूज़ कर रहे हैं दूसरी सिटी में। अभी ये है कि यहीं पे आके अगर इफ़ यू वांट टू सेंड समथिंग टू मी, आपने डंजो पे बुक करा और आपने मुझे वो भिजवा दिया, पोर्टर है। लेकिन डंजो अब क्या कर रहा है? सामान बेच, आप ऑर्डर भी कर सकते हो सामान को। कैसा सामान? जैसे ब्लिंकिट है, ग्रोसरी एंड ऑल। सो जस्ट रीड अबाउट इट गाइस एंड सो यू राइट इट इन योर पेपर्स, जस्ट राइट अबाउट इट कि डंजो को कितना लॉस हो रहा है कि उन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं अपना बिजनेस सीन
एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज कि सामान भी बेच देते हैं। उससे क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई। अगर आपको ब्लिंकिट या ऐसा आपको जेप्टो की तरह काम करना है, आपको डार्क स्टोर भी तो चाहिए ना सामान रखने के लिए। पहले तो क्या था, सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए यहाँ से सामान उठा के यहाँ जाने के लिए। उनकी कोर था, उनका ये कोर कॉम्पिटेंसी थी। अब उन्होंने क्या सोचा, हम बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं कि सामान भी खरीद लो आप वहीं से, जो आपकी क्विक कॉमर्स वाली जैसी चीज़ें होती हैं कि कुछ साबुन मंगवा लिया, तेल मंगवा लिया, ये सब इन्होंने ये भी शुरू कर दिया। एंड नाउ दे आर सीइंग सर्टेन लॉसेस। सो रीड अबाउट इट। अच्छा, जो भी अब आप कोई भी आप सामान खरीदेंगे ना, एक तो अपने आप को ना आप कस्टमर या कंज्यूमर समझना बंद कर दो। कुछ भी कोई भी सामान लेते हो, सो नाउ जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि एज अ बिजनेस अगर आप उस कंपनी के पार्ट होते तो व्हाट वुड हैव बीन योर अप्रोच। ये क्यों ज़रूरी है, सिंस नाउ यू आर इन योर 6th semester and soon you will be getting into a space where probably you guys would start working. देखो ओवरनाइट होते ही आप जब जाओगे ना वहाँ, तो ऐसा लगेगा कि करना क्या है, कि कहाँ गए हम, अब तक तो हम स्टूडेंट थे, ये कौन सी जगह है भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये कोई काम दे रहा है हमें, कैसे करेंगे काम। हर चीज़ की ना यू हैव टू हैव अ सर्टन मसल इन योर ब्रेन ऑल्सो। तो अभी से आप लोग अपने आप को ज़रा कस्टमर कंज्यूमर समझना बंद करो। अब जब कभी लक्स का साबुन खरीदोगे तो उसमें देखो किसका है लक्स, कौन सी कंपनी का है। लक्स का साबुन आता है, किसका है, बोलो आप बोलो। नहीं पता था ना, आपको पता था। तो अब ना आपको यू हैव टू गो बिहाइंड द सीन। BTS पता है ना, बिहाइंड द सीन, वो वाला BTS नहीं। ठीक है। सो पैंटीन किसका है, सर्च करो। डव HUL का है। पैंटीन किसका है, पैंटीन हो गया, मोर्टीन है, किसका है ये, डिटॉल किसका है, PNG पैंटीन। डिटॉल किसका है, नहीं, करो बेटा सर्च करो। आप लोग सब यू कैन यूज योर फोन्स। हाँ बोलो बोलो, देखो रैकेट बेनकाइजर। डिटॉल हमने कब से यूज़ करते हुए आ रहे हैं ना, कब से तो यूज़ कर रहे हैं। कभी सोचा है कौन सी कंपनी बना रही है, नहीं सोचा, क्योंकि अब तक तो हम कंज्यूमर्स ही थे, हमें क्या लेना देना, हम दुकान पे गए, भैया चोट लग गई, डिटॉल दे दो, ले लिया, आ गए। बट अब ये आप लोगों को अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलना पड़ेगा। क्यों, कल को रैकेट बेनकाइजर में जॉब कर रहे हो तो इट्स अ ह्यूज कंपनी राइट, इट हैज़ इट्स टर्नओवर इन बिलियंस। सेवलॉन किसका है, देखो डिटॉल एंड सेवलॉन एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स है ना, किसका है ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए किया खरीदने, सेल्टोस लेने की और क्रेटा लेने की कार, कौन सी लोगे, क्रेटा या सेल्टोस। बताओ, यू सीन बोथ द कार्स ऑन द रोड राइट। अगर इन दो गाड़ियों में से एक लेनी है, क्रेटा लोगे आप, क्रेटा लोगे और क्रेटा लोगे, सेल्टोस नहीं लोगे, है ना। तो इसमें किस, सेल्टोस लोगे, इसमें किसका प्रॉफिट कौन बनाएगा ज़्यादा, क्रेटा मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, सेल्टोस कम लोग, प्रॉफिट कौन बनाएगा इससे ज़्यादा, क्रेटा बनाएगी। अच्छा अब ज़रा देखो क्रेटा और सेल्टोस की कंपनी कौन सी है, देखो देखो देखो, तो कौन बना रहा है इसमें फाइनली, Hyundai की है ना। और किया किसके अंडर का वो ब्रांड है, तो कौन बना रहा है प्रॉफिट। सो व्हाई डू दे कम अप विद टू प्रोडक्ट्स,
क्रेटा और सेल्टोस क्यों लाए? कि उन्हें फर्क, आप लोगों को 2 वेरिएंट्स दे दिए, कुछ भी खरीदो प्रॉफिट तो हमको ही हो रहा है। नहीं पता था ना अभी कि दे आर अंडर द सेम अम्ब्रेला। तो अभी ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। कल को आप लोग ही काम करो, मान लो आप Hyundai में काम कर रहे हो, you are working at some showroom, you are in the sales manager, you are working in an automobile company, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कोई एग्जाम्पल दो ऐसा किसी और ब्रांड का। जितनी भी लग्जरी कार्स आप देखते हो, किसका है ये? प्रॉफिट किसको हो रहा है अल्टीमेटली? फोक्सवैगन को। बाहर हम लोग खुश हो रहे हैं, ये हमारी ये गाड़ी हमारा। तो ये सारी अवेयरनेस ना होनी चाहिए आप लोगों को अभी ग्रेजुअली। अगर हम टाटा की बात करें तो इट इज़ टारगेटिंग ऑल द सेगमेंट्स। टॉप एंड में अगर बिल्कुल ही हायर प्रोडक्ट में जाएं तो लैंड क्रूज़र, लैंड रोवर, ये सारी गाड़ियाँ भी उनकी हैं और पंच भी उनकी है। क्या कर रहे हैं वो? सबके लिए हमारे पास गाड़ी है। आप अपना बताओ ब्रैकेट, सैलरी ब्रैकेट बताओ, वी हैव अ कार फॉर यू। तो अभी आप लोगों को ना उस सेंस में सोचना शुरू करना होगा। अगर रेस्टोरेंट भी जाओगे तो ये नहीं हम खाना खाने चले गए भाई, वहाँ पर भी जब आप बैठोगे तो वहाँ सोचना कि कितने कमा रहा होगा पैसे, कैसे करोगे वो? 1 घंटा रेस्टोरेंट में बैठते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो वो लोग देखना शुरू कर देते हैं, है ना? कितना बिल आता है? 2 लोग अगर गए 600-700 इफ़ यू गोइंग टू अ क्विक बाइट रेस्टोरेंट, है ना? और मान लो वहाँ पे 10 टेबल हैं, मान लो वो 12 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, ठीक है, और 10 घंटे में फुल 100% ऑक्यूपेंसी है और एक टेबल का 600 रुपये बिल आ रहा है, तो 10 टेबल का कितना आएगा 1 घंटे में? 6,000। और 10 घंटे में? हाँ 60,000। चलो अब एक काम करते हैं, हम इसको 30 डेज ओपन कर देते हैं। कितना हुआ? 18 लाख। हमारा स्टाफ रखा है, उनको तनख्वाह दे देते हैं भाई। कितनी तनख्वाह दें? चलो ठीक है, 2 वेटर्स हैं, एक मैनेजर रख लेते हैं और एक शेफ़ है। कितना दें इनको टोटल? 30,000 दे देते हैं। हाँ शेफ़ को, हाँ वेटर्स को 15-15 दे देते हैं, 60 हो गया यहाँ पे। मान लेते हैं 1 लाख रुपए पूरा दे दिया हमने, दे दिया, चलो गुड। अब जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है वो सब कुछ है, वो कितने का लें? 1 लाख का ले लें? 2 लाख ले लेते हैं। 3 लाख लेना है? 3 लाख ले, 3 लाख तो नहीं होता है, और चलो 3 लाख ले लेते हैं, ठीक है। 14 हो गए। बिजली का बिल तो भर दो भाई, 50,000 भरते हैं, इतना तो नहीं है, चलो ठीक है। पानी का सबका मिला के 50,000 दे देते हैं। कितना रह गया? ठीक है। अब यार अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, नहीं तो रेंट तो दो। कितना रेंट दे दिया? हाँ कितना दे रहे हैं? 3.5 लाख रुपए रेंट दे दें। लेकिन फिर अच्छी मार्केट में 600-700 रुपये बिल भी नहीं आएगा 1 घंटे का सर। मिनिमम बिल आएगा आपका 2 से 2,500। चलो ठीक है, दे देते हैं 3 लाख। कितना हो गया अभी? 10.5। ये क्या है आपका? मज़े आ गए ना, आएगी नहीं? और मान लो कि 100% ऑक्यूपेंसी नहीं थी, मान लो 50% थी, मान लो 5 लाख ही बच गए, बुरे हैं क्या? ठीक है, कई लोगों की तो पूरी एनुअल सैलरी होती है, ये महीने में आ गए इतने। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। करोगे? कर लोगे ना कि सब जाके सीधा सबके गले में घुस जाओ कि ये कितने कमा रहा है। हाँ देखो, अब इतने सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो जाते हैं भाई
ये मोमोज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके वीडियोस बन रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सुदामा टी स्टॉल भी अब सब हो रहा है। अब ये नहीं तुम लोग शुरू कर दो वैसा, बट मैं ये बोल रही हूँ कि नो, नाउ वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। क्या पता कल को यू वांट टू हैव योर ओन बिजनेस, हाँ, व्हाट इफ यू वांट टू हैव योर ओन बिजनेस, है ना, कोई भी ऐसी, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट, राइट। खुद का बिजनेस कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को कितनी तनख्वाह दोगे, कैसे करोगे मैथ्स, यही तो करोगे, कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, आफ्टर टैक्स, ये सब टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, पैट वैट एबिटा वेबिटा पढ़ा है ना, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है चलो। सो बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज एक तरह की वेयर वी स्टार्टेड सिक्योरिटी देती है, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू एवरीवन, एम्प्लॉयज़ को भी, कस्टमर्स को भी, ठीक है। So putting it in a more structured way, it provides a direction and a focus. It facilitates resource allocation, कहाँ पे क्या resource हमको deploy करना है. Then it ensures adaptability in dynamic environments. Last but not the least, it enhances the competitive advantage. जो भी external changes आ रहे हैं, जैसे जब कोविड आया और वैक्सीन की जब कमी दिखने लगी, सो कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी कभी सुनी है आपने, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जीएसके सुना है, फाइजर, जीएसके के तो बड़े सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जरा सर्च करो कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, करो सर्च करो, किस, हाँ करो जीएसके, जीएसके डालो बेटा, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे। इट्स जस्ट दैट हमने कभी पलट के देखा ही नहीं एमआरपी और एक्सपायरी डेट के अलावा, कोई बात नहीं, हमने बस क्या देखा कि कितने का है, यूज़ कैसे करना है और एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। तो उस टाइम पर जब वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज थी, ये दो कंपनी वैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट दे केम टुगेदर फॉर अ बिगर गोल, दे चेंज देयर पॉलिसी। देखो स्पेशली क्या होता है ना, आप सोचो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए साथ में काम करना कितनी बड़ी बात है, बिकॉज दे हैव देयर सीक्रेट फॉर्मुलेशंस ऑफ देयर मेडिसिन दैट दे हैव देयर पेटेंट्स, दे डोंट शेयर। बट अगर आप किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, तो शेयर करना पड़ेगा ना आपको। बट यहाँ पे किसी का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग था, किसी का वैक्सीन का फॉर्मुलेशन स्ट्रॉन्ग था, and they came together. So there was a change in their business policy that we would work with our competitor. ठीक है. So now let's just try to understand what is the strategic management process. What is strategic management process? When we are making a strategy, it comprises of 3 parts. ठीक है. Formulation, implementation and evaluation, ठीक है। Why is this important? So that अगर हमें कहीं पे भी कुछ चेंजेस करने हो, इन चीज़ों को ब्रेक डाउन कराए, अगर कहीं पे भी कोई इशू हो तो दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ एंड वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स। सो क्या है, पहले आप सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, अभी 100 लोग हैं एज अ कस्टमर, 1000 करने कैसे करती है कंपनीज आजकल, शार्क टैंक वगैरह में देखा है ना, जैसे ही वो लोग आते हैं वहाँ पर सडनली दे गेट सो मच ऑफ मार्केटिंग उनकी हो जाती है, उधर आके एकदम बूस्ट हो जाता है उनके कस्टमर बेस, होता है ना, बहुत सारे आते हैं बाद में एक ईमो स्टोरी दिखाते हैं, एक आया और रो रहा है वहाँ पे, फिर सडनली सब लोग उसको एकदम ही ट्रैफिक आ गया उसके वेबसाइट पे, सारे लोग जाके खरीदने लग गए। हाँ, जो माले नगर में था। हाँ, तो ये कैसे, ये क्या होता है, अचानक से एकदम मार्केटिंग हो गई और एकदम उनका, सो बट दीज आर सर्टेन
ये तो चलो दे डिडंट सी दिस कमिंग, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन एनवायरमेंटल एनालिसिस, व्हाट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस? अगर मैं कोई बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव सोचा है ये क्या डुएबल है? जैसे कि अब जब ईवीज आ रहे हैं मार्केट में, सो कंपनी का, जैसे टाटा ने अभी बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली हैं जो ईवी सेगमेंट में निकाली हैं। They have set a company's objective कि by the year 2030 we have to have certain fleet of cars which are based on EV. उन्होंने environment analysis करा होगा। environmental analysis कैसे करा है? उसके भी there are certain frameworks with due course of time, सब पढ़ेंगे। बट environmental analysis अगर मोटा मोटा देखें तो क्या करा कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट तो बिल्कुल थम्स अप है कि लाओ EV। क्या EV के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ? अगर नहीं मिल रहे हैं तो प्रोक्योर हो पा रहे हैं? क्या उनमें कोई टैक्स तो नहीं है ज़्यादा? क्या ऐसे तो नहीं कल को इशू आ जाएगा? फिर उसको रिसाइकल करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्राइसिंग ठीक है? ईवी की गाड़ी आपको पता है ना महंगी आती हैं, नॉर्मल से महंगी आ रही हैं। अभी चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है प्रॉपर। बट दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब आप लोग सोचोगे कि मैम अभी हमें इससे क्या करना है? मानो कल आप कर रहे हो टाटा में काम इन द ईवी सेगमेंट, कर सकते हो ना, आप कर सकते हो। मानो आपने अप्लाई करा एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट दे आर लुकिंग आउट फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स का फ़ायदा क्या होता है कंपनीज को? देखो यार, प्रॉब्लम नहीं है काम करने में और ऐसे ही करना चाहिए। वाई शुड एनीबडी पे यू फॉर डूइंग नथिंग? Be that kind of an employee that you would want for your company. It is simple. अगर आपकी कंपनी हो और आपके एम्प्लॉयज़ हों, तो जैसे वो आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम करें, सिमिलर वे जब आप किसी और की कंपनी में काम कर रहे हो, यू शुड वर्क इन द सेम ज़ील, विद द सेम ज़ील। ऐसे क्यों हो कि आपकी कंपनी में तो लोग एकदम 100% से भी ऊपर काम करें, अपने एफिशिएंसी एकदम 100% हो, लेकिन आप जब कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ गए, चाय पी ली, फिर आ गए, थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर लंच हो गया, फिर आ गए, थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर एक ब्रेक पे चले गए, फिर क्यों? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज व्हाट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन टाटा और आपको यही काम देते हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी है, आपको एनालिसिस करना है कि अच्छा हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ये ओला की स्कूटर्स आ रहे हैं, कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं उसके, देखा ना कि कोई एक, मैंने आई सॉ दिस वेरी वायलेंट वीडियो ऑफ समबडी स्मैशिंग द स्कूटर एंड यू नो इन अ वेरी ब्रूटल वे। दैट आई मीन आई फाउंड इट रियली weird and it was really upsetting. Fine, you don't like a product, it's okay, but creating such a violent scene and putting it online was not required, right? You always have a consumer bureau where you can always go and complain about certain products if you don't like something. Anyways, so what I'm trying to say is if you are part of some organization where आपको यही काम दिया जाएगा कि जाओ एनवायरनमेंट स्कैन, और ऐसे ही काम मिलते हैं, यही काम होते हैं। नॉट जस्ट अगर आप IIM से भी MBA करते हो, अगर आप ITC जैसी कंपनीज में जॉब करते हो, पहला काम ही यही होता है। ITC के प्रोडक्ट्स पता है ना सबको, they are into the tobacco business, they are into soaps, they are into lifestyle, so many things, and आप देखोगे कहीं किसी गांव कूचे कहीं पे उनका प्रोडक्ट होता है, तो सबसे पहले एज MBA जैसे आप पास आउट होते हो यही काम देते हैं आपको। दे ऑब्वियसली गिव लॉट ऑफ सैलरी, बट वो यही देते हैं कि आप जाओ जाके देख कर आओ हमारा प्रोडक्ट एक हैदराबाद के पास के कौन से गांव तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो पहुंचाओ, और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, और अगर हम एक नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं तो उसको पूरा एनालाइज करो कि प्रोडक्ट आएगा तो क्या सूटेबल है, क्या मैच है। ये सारे काम ही मिलेंगे आपको शुरू में कि जाओ दिल्ली में देख कर आओ। देखा होगा ना अश्नील ग्रोवर के इंटरव्यूज़ कि हम लोग भारत पे का हमने QR कोड लगाया और जहाँ जहाँ दूसरी कंपनीज के लगे थे हमने हटा दिए।
ये तो उसने ओपनली बोला ही हुआ है खुद से। आपको मानो आप फ़ोन पे में आपकी नौकरी लग गई और हमने देखा ना कि हर जगह वी कैन यूज़ द QR कोड एंड वी कैन स्कैन इट एंड वी कैन मेक द पेमेंट्स, राइट। एक बात बताओ, पहले कभी आप मानो किसी दुकान में ब्रेड लेने गए और ब्रेड आई 18 रुपये की और उनके पास 2 रुपये नहीं है, तो क्या करते थे वो लोग? टॉफ़ी दे देते थे ना। लिया ना सबने, 2 रुपये के बदले में टॉफ़ी ले ली और ले भी आते थे, हम कुछ मना भी नहीं करते थे। बट एक बात बताओ, अब जब हम QR पेमेंट कर रहे हैं, इज देयर अ प्रॉब्लम ऑफ चेंज? आपको टॉफ़ी मिल रही है 2 रुपये के बदले? अब देखो ये चीज़ हो गई एकदम माइक्रो लेवल पे। अब ये सोचो कि कंपनीज को कैसे फ़र्क पड़ रहा है। टॉफ़ी की सेल 30% कम चली गई है इससे। हम पे 18 रुपये पे कर रहे हैं, 19 रुपये ही पे कर रहे हैं, 1 रुपये तो कोई वापस ही नहीं आता है। हमें थोड़ी ऐसे करते हैं पेटीएम से पे कर रहे हैं 20 रुपये की, 1 रुपया और टॉफ़ी दे दो, पर पहले ऐसे करते थे। तो पहले 1 रुपया मतलब होता था एक कॉफ़ी बाइट, 1 रुपया होता था एक एक्लेयर की टॉफ़ी, अब नहीं होता, 2 की आती है मानो। बट अब क्या हो रहा है, QR जब पेमेंट हम कर रहे हैं तो हमें कोई टॉफ़ी नहीं मिल रही है और कंपनियों ने बनाना, उनको लॉस हो गया, उन्होंने तो बना ली थी सारी। बहुत मैंने देखा है मदर डेयरी वगैरह में दूध लेते थे तो भी वो टॉफ़ी दे रहे थे, भाई नहीं चाहिए पैसे दे दो खुले, या आप टॉफ़ी ले लो। अब तो हम सीधा स्कैन करा और जैसे ही पेमेंट करी, देवियों सज्जनों आपकी 20 रुपये की पेमेंट मिल गई है वाला एक है ना आ जाता है। तो नाउ यू हैव टू बी मोर ऑब्जर्वेंट कि जो भी चेंजेस होते हैं ना उससे एट अ मैक्रो लेवल बिजनेसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। So what is strategy formulation? What does it comprise of? It comprises of, as I mentioned, internal analysis, external analysis and setting the objectives. अब इसमें जो चीज़ें लिखी हैं पेस्टल, स्वॉट, स्मार्ट, ये हम सब करेंगे। बट व्हाट आर इंटरनल एनालिसिस, कि आपको देखना है कि आपकी एज अ कंपनी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। कैसे होगा स्वॉट एनालिसिस, पता है किसी को? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, कोई बात ही नहीं पता, हम पढ़ेंगे ये, ठीक है, डोंट वरी। तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये हो गई आपकी इंटरनल चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन की। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वीकनेसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दीज आर दी एक्सटर्नल थिंग्स, कि आपको क्या थ्रेट हो सकता है किसी से, आपकी कंपनी को, और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अचानक से देखते हैं ना कि कोई कंपनी ने नई चीज़ स्टार्ट कर दी एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। फॉर एग्जांपल, व्हेन डीमोनेटाइजेशन हैपेंड ओवरनाइट, जब टाइम्स ऑफ इंडिया छपने वाला था, रात को अखबार आता है ना सुबह, डीमोनेटाइजेशन पता है? पेटीएम ने क्या किया, रात को ही फर्स्ट पेज पे दे कॉन्टैक्टेड टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस। As soon as this was announced, I think I still remember I was at some clinic. हाँ, I was at some clinic and हाँ 17 अरे श्योर 16 हुआ था शायद। So as soon as it was announced, पेटीएम ने कहा दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी, एंड उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी ऐड दी थी 16 कि अब ये शुरू हो गया, आपके तो नोट तो नहीं चलेंगे, डिजिटल पेमेंट्स करो, एंड दे मेड द मोस्ट ऑफ इट। बट ऑब्वियसली दे कुडंट सस्टेन इट एंड वी नो नाउ वेयर पेटीएम इज, राइट। एनीवेज, सो व्हाट इज स्मार्ट, आपका ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी का, एक तो सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली, कहना क्या चाहते हो, क्या चीज़ है जो आपको फुलफिल करनी है। इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो वो मेजर्ड हो। कि मानो हम लोग 1000 अपने प्रोडक्शन में 1000 कार्स एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर,
इट शुड बी मेजरेबल, देन इट शुड बी अचीवेबल। ऐसा नहीं कि हम 10 लाख गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वो डुएबल ही नहीं है। तो आपका जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल भी होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। पहले से ही हम लोग तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें क्या एफर्ट डालना। देन इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। रेलिवेंट कैसे? अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है तो जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग, राइट, एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट को अपनी लाइफ में ऐड करो, जो भी करना चाहते हो, बी वेरी स्पेसिफिक। Measurable 90% plus, specific clearing the exam with good marks, 90% plus लाना है, ऐसा गोल रखो, अचीवेबल हो कि हाँ कर सकते हैं, अपनी तो क्षमता सबको पता ही होती है। देन इट शुड बी रेलिवेंट, कि मानो आप इसके बाद आप जो भी लो कैट देना चाहते हो, अब ये नहीं कि अचानक से आप सोचो कि मैं तो कुछ और ही एग्जाम क्लियर कर लूँ, डेटा साइंटिस्ट बन जाऊँ आफ्टर डूइंग दिस। एंड सर्टनली इट शुड बी टाइम बाउंड ऑल्सो, कि दिस इज ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना बना दी, पढ़े ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा पेपर क्लियर, बट नहीं हम तो बिल्कुल इसमें एकदम कर्मनिष्ठ होकर काम करें, नहीं, इट शुड बी टाइम बाउंड एज वेल। देन व्हाट इज द सेकेंड थिंग? ठीक है, स्ट्रैटेजी बन गई, हमने सब स्कैन कर लिया, सब कर लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, अब क्या होना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कि बातें बहुत कर ली, थोड़ा काम करते। काम कैसे करना है? कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है या जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्रॉपरली डिप्लॉय करें, या हमारी मशीनरी है उनको कैसे हम यूज़ करें टू इंश्योर कि हमारा ऑप्टिमम यूसेज हो रहा है। ठीक है, फर्दर हम अपनी पॉलिसीज़ कैसे बना रहे हैं, हमने गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन इवैल्यूएशन। देखो हमेशा ना याद रखो, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन बी मैनेज्ड। समझ में आया? कि अगर आप ये मेजर कर पा रहे हो ना कि आज मैंने 2 यूनिट चैप्टर पढ़े हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा। अगर आप ओपन एंडेड छोड़ दोगे ना कि आज पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे ही हो जाता है, पता ही है हमें सबको कि आज मैंने 1 यूनिट, मतलब अचीवेबल चीज़ 1 यूनिट मुझे आज पढ़ना है, देन 1 यूनिट पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेंगे भाई, वो मैनेज भी हो जाएगा, बिकॉज दैट कैन बी मेजर्ड, राइट। सो आप जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी, उसका जो आउटपुट आ रहा है, इंश्योर दैट इट इज़ measured, it is measurable. Then accordingly अगर आपके कुछ, do you understand key performance indicators क्या होते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने? What are KPIs? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, it's okay. So ये सारे terminologies generally MBA में जब HR पढ़ते हैं तब ये आती हैं चीज़ें। कैसा होता है KPI? मान लीजिए आप operations में हैं and you are taking care of manufacturing of 1000 unit of cars. क्या ये हो पा रहा है कि अंडर हिम व्हेन ही इज़ द मैनेजर ऑफ दैट यूनिट, आपका प्रमोशन, आपकी परफॉर्मेंस उस पर बेस्ड होगी अगर आपकी यूनिट ने 1000 गाड़ियाँ रोल आउट कर दी। मान लो 800 ही हुई, तो आपके पॉइंट कटेंगे, बिकॉज क्यों नहीं हो पाया? योर हेड वुड आस्क यू व्हाट वाज द इशू, क्यों नहीं हो पाया? अचीवेबल टारगेट था, आपसे पहले जो आए थे उन्होंने 1000 गाड़ियाँ निकाल पाए, आपकी यूनिट में क्यों नहीं हो पाया ये? बट ऑब्वियसली दे कैन बी वेरियस रीजंस, कि नहीं, मान लीजिए कुछ हड़ताल हो गई थी वर्कर्स की, कुछ भी हो सकता है ना ऐसा। एंड देन अगर आप मान लीजिए यू आर नॉट एबल टू achieve that particular target, then you need to twitch it, gaps identify करो, कहाँ कमी रह गई। अगर वर्कर्स की कुछ इशू थे तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम वो इश्यूज ना रहे। जो भी उनकी डिमांड्स हैं, अगर ऐसी डिमांड्स हैं जो फुलफिल हो सकती हैं, दैट वी कैन टेक केयर ऑफ, फुलफिल देम। मान लो वो कह रहे हैं कि हमारे वेजेस इंक्रीज करो, हमें और अच्छे कंडीशंस दो काम करने के लिए, इफ़ दोज थिंग्स आर डूएबल, इफ़ दोज थिंग्स आर समथिंग दैट आप प्रोवाइड कर सकते हो, देन व्हाई नॉट, राइट। सो strategy, it has 3 parts. First part being formulation, implementation, evaluation. एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पर?
बताओ. What are the phases of strategic management process? What are the phases of strategy management process? Give an example. ये आपने एक्सप्लेन करी और एक एग्जाम्पल से उसको फर्दर हाईलाइट कर. देखो, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फेल होना बहुत ही मुश्किल है. फेल होना मुश्किल है, नहीं हो गए. इट इज़ सिंपल, बट यू शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज बिहाइंड इट, है ना. कि थोड़ा बहुत भी अगर आप क्लास में अटेंटिवली पढ़ लेते हो एंड यू गो थ्रू योर एसेंडेंस एंड यू कीप द एग्जाम्पल्स इन माइंड, इट इज़ वेरी मच डूएबल. ठीक है. सो what are the 5 keys to successful strategy execution? You have to commit to your strategic plan. जो resources हैं उसके according आप दें उसको, jobs उसके according आप align करें. Then you need to communicate whatever you have planned with your employees. As a manager, you have to communicate this to your entire team, that what is your objective, what do you want to achieve, right? Then you need to have a proper measure for उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उनके मेट्रिक्स होने चाहिए. जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया अभी, 1000 गाड़ियाँ निकालनी है, नहीं हो रही है तो यू विल बी नहीं you will be answerable, right? Maybe it will impact your bonus, we don't know. हर कंपनी का एक होता है ना, दे हैव की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि कैसे आप एक एम्प्लॉई को, आपको पता है ना हर एक को सेम बोनस नहीं मिलता है, अकॉर्डिंग टू द वर्क मिलता है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस बोनसेस मिलते हैं, राइट. देन यू हैव टू बैलेंस योर इनोवेशन एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन व्हाट इज गोइंग इन योर पर्टिकुलर टीम एंड योर टुवर्ड्स योर कंपनीज ग्रोथ. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन. क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस और कौन लेता है डिसीजंस? Who are the key decision makers in an हाँ Top level management. and ठीक है, they are the, उसके बाद Managers, department managers. So when I talk about corporate level strategy, तो कौन है उसका पार्ट corporate level strategy का? They look at the bigger picture. कि मानो हमें अब एक EV सेगमेंट पूरा लॉन्च करना है. These kind of strategies are made in the corporate level. It comprises of the C-suite. What is C-suite? Your CXOs and your CEOs and CFOs and CHROs, so on and so forth. The directors of the company, the MDs of the company, the chairman of the company. वो लोग सोचते हैं कि अब हम एक EV सेगमेंट, जैसे गाड़ी का मानो EV सेगमेंट हम लेकर आएंगे, राइट. या हम एक नए मार्केट में एंटर करेंगे. मानो अब इंडिया में बहुत कर लिया, अब हम किसी और कंट्री में जाते हैं, अक्वायर करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ग्लोबल एक्सपेंशन करेंगे. ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइड होती हैं? एट द कॉर्पोरेट लेवल. देन व्हाट अबाउट आवर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी? कि अब ये डिसाइड तो कर लिया कि हमें ये करना है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी? ये है कि जैसे लग्जरी कार का आपने एग्जाम्पल दिया कि लग्जरी कार में जाना है. अभी हमने ये तो बोल दिया कि हमको, कॉर्पोरेट ने सोच लिया, टाटा के कॉर्पोरेट ने, कि हमें लग्जरी में जाना है. अब बिजनेस लेवल पे सोचा जाएगा कि अच्छा एक काम करते हैं, जैगुआर वालों से बात कर लेते हैं. ये कहाँ पे बनी स्ट्रैटेजी? एट द बिजनेस लेवल. ठीक है. यहाँ क्या हुआ? ये करना है, ये क्या कि हाँ किसको टारगेट करना है. अब आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी. ये सपोर्ट करता है बिजनेस लेवल को कि ठीक है जैगुआर के साथ हमें टाई अप करना है, एक्वायर करना है, बट कैसे करना है, क्या करना होगा उसके लिए, वो सारा काम कहाँ हो रहा है? फंक्शनल लेवल पे. देयर डॉक्यूमेंटेशंस विच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, किस प्राइस पर कौन सी कैपिटल हमारी लगेगी इन दैट एक्विजिशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो कंपेयर्स द डे टू डे एक्टिविटीज़. ठीक है. थोड़ा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. कॉर्पोरेट लेवल, द सी सूट, राइट. बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल आपके जो रीजनल हेड्स होते हैं, VPs होते हैं, ये सारे लोग हैं.
फंक्शनल लेवल कैसे हो गया आपका कि जो आपके हेड्स हैं पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे एचआर, पता है एचआर फंक्शन होता है मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्दर समझते हैं इसको विद एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। बैंक में कॉर्पोरेट लेवल पे क्या हो गया, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपकी ऑडिट टीम हो गई, आपके जीएम्स हो गए। देन व्हाट इज द बिजनेस लेवल, बैंक है, मान लो आईसीआईसीआई बैंक है तो उसके रिटेल बैंकिंग चेन है, फ़ोन आते हैं इंश्योरेंस करवा लो, उसका एक अलग सेगमेंट है। कोई बोलते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर देते हैं, आप तो बहुत पैसे कमा रहे हो, हम लगवा देते हैं आपके पैसे कि कौन सी एफडी ले लो, कौन से म्यूचुअल फंड्स ले लो, इसके लिए अलग डिवीजन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज फंक्शनल लेवल, ये करने के लिए एक मार्केटिंग टीम है हर एक की, एक रिसर्च टीम है, एक एचआर है। कोई एचआर टीम है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट देख रहा है, कोई टीम है जो सिर्फ आईटी टीम है जो सिर्फ रिसर्च मैनेजमेंट देख रहा है, कोई रिटेल बैंकिंग देख रहा है डेडिकेटेड। सो देयर इज अ कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस एंड देन इवेंचुअली फंक्शनल। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपका, बताओ, व्हाट आर दी levels of strategies and explain it with the help of an example. और ये क्वेश्चन बन सकता है, imagine you are a GM of a XYZ bank, right? What would be the various level of strategies and what would each business level strategy comprise of, and so on and so forth, those kind of questions. Now let's try to understand what is vision and mission. क्या होता है कंपनी का विजन, what is the difference between vision and mission? What is your vision, next 5-year vision बताओ for yourself, where do you see yourself in next 5 years? बताओ, आप बताओ यश, व्हाट इज अ विजन, नेक्स्ट 5-year विजन? ओके, दैट्स योर पर्सनल गोल। ओके, व्हाट इनकम, पैसिव इनकम, ओके, हाँ ठीक है, ओके, एंड बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज योर, आपने अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल दोनों 5 years का ये, दिस इज योर विजन। एंड व्हाट इज योर मिशन, बेटा विजन वुड बी इन लाइन विद रिस्पेक्ट टू योर मिशन ना, सॉरी योर मिशन वुड बी इन रिस्पेक्ट टू योर विजन, राइट? आपका विजन है टू हैव अ गुड फैमिली एंड यू नो हैव अ फैमिली लाइफ एंड ऑल दैट। प्रोफेशनल गोल है टू हैव योर पैसिव इनकम एंड टू हैव योर ओन बिजनेस। मिशन है कि वो अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, क्या ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस। फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांट टू हैव अ प्रोफेशनल गोल, इफ यू वांट टू हैव अ बिजनेस और यू वांट टू हैव अ पैसिव इनकम, फॉर एग्जांपल पैसिव इनकम हो सकती है कोई रेंट आ रहा है आपको, या इस तरह से कोई चीज़ है, या आपकी कोई गाड़ी है आपने लगा दी, उसको ओला दे दी किसी को, सर यू नो वेरी क्रूड एग्जांपल ऑफ अ पैसिव इनकम। क्या कर रहे हो उसके लिए, आज कुछ तो पैसे जोड़ोगे ना तभी तो खरीदोगे, तो वो करने के लिए आज क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, आज तो एग्ज़ाम दोगे, पास आउट हो गए यहाँ से, probably you'll try to find some job if you want to have some corpus of capital, if you don't want to take it from your family, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ करोगे ना उस विजन के लिए कि 5 साल बाद। अच्छा, पर्सनल के लिए क्या करोगे, because both the things are very important certainly. What will you do for your personal? Right, say, and it's okay, it's fine, but for that to happen, see here you all are above 18, right? So we can have these discussions. So what will you do for that? You will look out for a suitable match, है ना, something, just someone with whom your thoughts are aligned with, somebody you know आपको आपके business में कोई help कर सके. So see, both the things are important, right? Personal, but वो चीज़ achieve करने के लिए, to have that vision, you have to do certain things. You need to have an idea कि
if you're looking for a suitable match, कि what are the qualities you are looking out in your partner. Because this is, you might find it very funny, but it is a very, very critical decision. It's very crucial. It is one of the most, अगर आप कभी देखेंगे what are the top 3 decisions of your life, सबसे टॉप पे तो यही आता है. हाँ, है ना, because this is so. Similarly, when we talk about in the sense of an organization, उसमें विजन क्या है आपका कि कहाँ पे आपकी डिजायर्ड पोजीशन है आपकी कंपनी की, where do you see your company. So for example, to be the market leader in the renewable energy in by 2030 or 2050, ये आपका विजन हो गया. पर कर क्या रहे हो, ऐसे थोड़ी ना ख्याली पुलाव बना लिया हो रहा है बन गए, नहीं. आज क्या कर रहे हो आप देखोगे, मैं अगर मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, मुझे उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा. कहाँ से आएगी बैटरीज, कहाँ से आएंगे सोलर पैनल्स, कौन से कंट्री से आएंगे, क्या कंट्री ओके है, क्या टैक्सेशन होगा, लेने के बाद रिसाइकलिंग कैसे होगी, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है. दीज आर सर्टन थिंग्स जो आप अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए, एकम्प्लिश करने के लिए आज करोगे. ठीक है. देन व्हाट इज द मिशन, कि मिशन क्या है कि टू डिलीवर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस ग्लोबली. ये हो गया आपका मिशन डेली बेस, कि हमें भी ऐसा काम कर रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी लोगों तक पहुंचा सके. हो रहा है ना अभी तो इंडिया में, तो कितना सोलर का सब चल रहा है. ज़्यादा अगर सोलर एनर्जी जनरेट होती है तो क्या करते हैं, कौन सा नेट मीटरिंग. व्हाट इज नेट मीटरिंग, लिखो नेट मीटरिंग, NET. क्या होता है कि अगर आप लोगों ने घर में सोलर पैनल्स लगाए हैं तो आप सेल कर सकते हो कि आपका एक्स्ट्रा बन गया, तो वो यू कैन गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट. सेम पड़ता है, बट ये आपकी कंजम्पशन पे भी तो डिपेंड करता है ना. मानो वाह, हाँ हाँ, देखो आपका अगर ब्रेक इवन भी आ रहा है तो भी ठीक है, एक्स्ट्रा बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्या है, विजन क्या है कि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस दैट अ कंपनी मेक्स कि हम ये चीज़ अचीव करेंगे, इतने टाइम में करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे. मिशन क्या है, हम आज क्या करेंगे, हम उस विजन को अचीव करने के लिए what are the various activities, what will be our value system, what will be our aims that we will pursue to achieve that particular goal, right. So vision is more long term, it is focused more on the future, whereas mission क्या है, present, आज क्या करोगे आप. Then what is the vision, what is the focus, inspirational and aspirational both. Mission क्या है, it is more practical and operational. ये तो हो सकता है कि ये कर देंगे हम, आज क्या करेंगे. अब मैं सोचूं कि मेरे स्टूडेंट्स ना टॉप करें सेमेस्टर 6 बिजनेस स्ट्रैटेजीज, आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं बैठे कि हाँ चलो लेट आ रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ. होगा नहीं होगा, सोचती रहूँ मैं कि कल को जब ये बच्चे आज से 10 साल बाद कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अच्छी अच्छी जॉब्स करेंगे और इनका कोई इंटरव्यू लेगा और ये बोलेंगे अच्छा आपको कैसे पढ़ाई स्ट्रैटेजी. हाँ कि सर आप तो मानो 20 years डाउन द लेन, और मैं चाहूँ कि बच्चे ना उस टाइम ना मेरा नाम ले, और मैम आ ही नहीं रही, आ रही है चले जा रही हैं. तो इट इज़ अबाउट योर व्हाट यू आर डूइंग टुडे, है ना. देन आपका पर्पस क्या होता है कि योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डिफाइन इट इन अ वेरी आर्टिकुलेट वे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. मिशन एक तरह की गाइडेंस होती है टू योर एम्प्लॉइज. वेरियस कंपनीज के क्या हैं, चलो हम गूगल का एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द विजन ऑफ गूगल, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक. मिशन क्या है, क्या करें डेली बेसिस पे, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल. कैसे कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं ये, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ल्ड इंफॉर्मेशन
गैदर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? डाल रहे हैं अपना डेटा, डाल रहे हैं ना, विकीपीडिया पेजेस बन रहे हैं ना, जा रही है ना इन्फॉर्मेशन। कुछ भी चीज़ करना होता है हम क्या करते हैं? हम ये भी नहीं बोलते सर्च कर लो, क्या बोलते हैं? गूगल कर लो। अभी ये सिनोनिम बन गए सर्च एंड गूगल। दूसरी कंपनी ले लेते हैं, अमेज़ॉन क्या कर रही है बेटा? कैन समवन रीड इट फॉर मी प्लीज? हाँ पढ़े। To be Earth's most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online. आपको पता है अमेज़ॉन सबसे पहले क्या, हाउ डिड दे स्टार्ट, व्हाट वर दे डूइंग? बुक्स बेचते थे सिर्फ, बस। स्नैपडील भी क्या कर रहा था पहले? पता है ना ये कंपनी कि नहीं पता? क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे, बुक्स। फ्लिपकार्ट क्या कर रही थी? गूगल इट, लिखो। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए अभी। ये नहीं कहीं बैठे हो बातें करो पता ही नहीं क्या बातें हो रही हैं ये। आप सब ना आप इन चीज़ों को ज़रा जानने की कोशिश करो कि ये जो सब चीज़ें हैं ये हाउ डिड दे स्टेम, हाउ डिड दे ऑल स्टार्ट, और इसका मिशन क्या है? टू सर्व Online and physical stores and focus on selection, price and convenience. ठीक है, डेली बेसिस पे हो रहा है। अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे डालना है, कभी किसी को पता है व्हाट इज़ द प्रोसेस? क्या करते हैं? हाँ हाँ, जीएसटी नंबर होना चाहिए, एंड देयर इज इट टेक्स अ लिटिल टाइम ऑल्सो। और उसमें आपने कभी देखा है, जैसे आप अमेज़ॉन का पेज खोलते हो चाहे मोबाइल में खोलते हो, कोई कोई प्रोडक्ट्स एकदम से पॉपअप होके आते हैं। अभी आपने देखा, अगर आप फ़ोन पे से कुछ पेमेंट कर रहे हो ना, तो उसमें जो एक सिंबल घूमता है वो एमआई का फ़ोन है। जब हम पेमेंट करते हैं फ़ोन पे पर, अभी नीचे जाओ खुद तो 2 रुपये की टॉफ़ी खरीद के देखना, तो जब हम वेट कर रहे होते हैं ना जब तक वो पेमेंट प्रोसेस होती है, एमआई का फ़ोन आ रहा है उसमें। देखना आप कौन सा आ रहा है, देखना देखना Flipkart भी से books online list. है ना, दे स्टार्टेड लाइक दिस। आप देखना है इसको क्या हो रहा है। ओके, मैंने एमआई का देखा था, देख लें। अब देखना एक बार दोबारा से, है ना, कि जब उस पर जब आ रहा है, वेट हो रहा है, जब तक हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो एमआई का आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं ऐसे, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? अब इन्होंने क्या कहा कि ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर्स एंड फोकस ऑन सिलेक्शन, प्राइस एंड कन्वीनियंस। आर दे वर्किंग टुवर्ड्स इट और नॉट? अमेज़ॉन कर रहा है ना। कोई एक नए प्रोडक्ट को अगर थोड़ा चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली आप सर्च करोगे हनी या कोकोनट ऑयल, तो पहले ना पैराशूट सबसे ऊपर आता था। अभी क्या होता है, कोई ऐसी कंपनी है, इनके टाइप्स होते हैं एंड दे पुट देम इनटू द प्रीमियम सेगमेंट, कि अगर आप कोकोनट ऑयल सर्च करोगे तो पहले वो कंपनी आएगी। दिस इज़ व्हाट देयर मॉडल इज, बिजनेस मॉडल इज। ठीक है, अच्छा बताओ, पेटीएम और फ़ोनपे का बिजनेस मॉडल क्या है? व्हाट आर दे डूइंग? हाउ डू दे मेक मनी? कैसे करते हैं? हाँ, और हाउ डू दे मेक मनी? एंड नहीं, और सोचो, ठीक है, और सोचो। हाँ, मानो मुझे आपको पेमेंट करनी है, 10 रुपये भेजने हैं, मैंने भेज दिए, आपके पास आ गए, कुछ चार्ज लगता है? टैक्स वगैरह? हाँ नहीं, कुछ नहीं लगता। कहाँ लगता है? अच्छा, मेरे इसमें कैसा है कि 2000 रुपये अपने आप फ़ोन पे काट लेता है। मैंने उसमें ऑटो रेन्यूअल पे डाला हुआ है कि जैसे ही फ़ोन पे के वॉलेट में मेरे 2000 रुपीज़ ख़त्म होते हैं तो वो 2000 रुपीज़ अपने आप रिप्लेनिश कर लेता है। क्या है इसका बिजनेस मॉडल फ़ोन पे का और इन सारी कंपनीज़ का? और कहाँ कमीशन हो रहा है बेटा? मैं अगर मानो, हाँ जो उसके पास पैसे वो कहीं और भी तो यूज करके कमा सकता है। हाँ, दिस इज व्हाट दे डू। वो तो एक अलग चीज़ है, एक तो इन बैंक, वो एक तो इंटरेस्ट, जैसे मैंने जो 2000 रुपये मानो उन्होंने काट के डाल दिए अपने वॉलेट में, उधर मेरे चले गए, ज़रूरी नहीं है ना मैंने कल कुछ खरीद लिया उससे। दिस इज़ व्हाट देयर बिजनेस इज।
दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ द मनी दैट वी आर डिपॉजिटिंग। आपको पता है जो मर्चेंट बैंकिंग होती है, आपके जो हम कहीं जिस शॉप पे कुछ खरीदते हैं तो तुरंत नहीं जाता उनके पास पैसे, इन मोस्ट केसेस होल्ड पे होते हैं ये। और हमारे भी क्या होता है कि पहले कहाँ जाते हैं, से मेरे 2000 रुपये हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, वो तो 24 आवर्स के लिए होल्ड पे होते हैं ना। तो दे मेक इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। आपके ऐसे कितने सारे कंज्यूमर्स हैं, 24 आवर्स में कैसे आपके पैसों को लगाया जाता है आगे। रात के 12 बजे ट्रांजैक्शन मतलब हाँ हो जाना चाहिए। हाँ, बट क्या आप एक देखो बेटा, आप माइक्रो लेवल पे, आप मैक्रो लेवल पे सोचो, कितने सारे कस्टमर्स हैं, कितने सारे मर्चेंट्स हैं, कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं, कितनी सारी शॉप्स हैं। व्हाट डू? दे पुट देयर मनी समवेयर एल्स, दैट कॉपर्स दैट दे कलेक्ट, दे आर पुटिंग इट समवेयर एल्स। फोन पे तो मीडिएटर हो गया ना, हाँ ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक हो रहा है। हाँ, तो आप नहीं देखो, आप समझो मैं क्या कह रही हूँ। आप जब ये ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपको ये लग रहा है कि बैंक टू बैंक है, पर फोन पे तो गया ही नहीं ना मेरा पैसा। गया है ना आपका पैसा, तो कैसे, हाँ तो कैसे जाएगा बताओ। जब वो बैंक एक दूसरे से ट्रांजैक्शन हाँ। करते हैं ना, जैसे तेरे तू और मैं, तेरे कस्टमर ने मुझे पैसे भेजे, मेरे कस्टमर तुझे भेजे, 5000 का तूने भेजा, 3000 का मेरा, अब इसमें कितना डिफरेंस है। अब मैं तेरे को 5000 दूंगा, फिर तू मुझे 3000 नहीं देगा, तो हम दोनों पहले काटेंगे इसका जो बैलेंस है, फिर जो बचेगा वो देनदारी होती है। ये जो फ़ोन पे का जो बेटा बिजनेस मॉडल है ना, ये जो आपको दिखता है कि ये कुछ चार्ज नहीं कर रहा है, बट दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप उनके पास जो कॉर्पस रह जाता है, दे मेक एन इंटरेस्ट ऑन इट, ये कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं आपके बेसिस पे, आपके मतलब आपको नहीं, किसी कंपनी को दे रहे हैं, दे आर डूइंग एन, दे आर बीइंग एन एंजल इन्वेस्टर समवेयर, किसी उसको वो कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बने हुए हैं, दे डू ऑल दोज थिंग्स। अब आपको पता, अब जैसे स्टारबक्स है कंपनी, पता है सबको, स्टारबक्स का क्या बिजनेस मॉडल है, कॉफ़ी पिलाना, क्या है उनका बिजनेस मॉडल? आपको पता है वो एक गिफ्ट, एक कार्ड होता है, एक कार्ड आपको आप जब भी कोई कॉफ़ी पीते हैं तो यू गेट सम स्टार्स ऑन इट, पॉइंट्स मिलता है वो स्टार के बेसिस पे, इतने आप स्टार्स इकट्ठे कर लेते हो तो यू गेट 1 कॉफ़ी फ्री। आपको वो जो कार्ड होता है उसको टॉपअप करवाते हो, 5,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, एक बार में तो आप वो कॉफ़ी नहीं पी रहे हो 5,000 रुपये की, वो पैसे कहाँ चले गए, स्टारबक्स में। क्या कर रहा है उन पैसों का, दे रहा है वो, दे डूइंग ऑल दोज थिंग्स। क्या होता है, आपने 100 पॉइंट अगर इकट्ठा, आपको एक कॉफ़ी तो पिलानी है। हाँ देखो, आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मानो मैंने, जब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे उसमें 2,000 रुपये ऑटो डिडक्ट हो जाते हैं, कि जैसे ही मैंने मान लो कहीं पे 200 रुपये कहीं खर्च करे हैं, हाँ जैसे आपने इस हाँ पे ट्रांसफर किया, हाँ ठीक है, हाँ मैंने इन पे ट्रांसफ़र करे पैसे, ठीक है, ये तो हो गया कि ये इनका एक वन बिजनेस मॉडल हो गया ना, कि मैंने इधर ट्रांजैक्शन कर दिया, मेरे को उनको मैंने 10 रुपये भेज दिए या इन्होंने मुझे 20 रुपये भेज दिए। लेकिन जब हम ये मर्चेंट लेवल पे बात करते हैं, बड़े लेवल पे बात करते हैं, कि जैसे हम लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं कहीं पे, हमने पेट्रोल फ्यूल करवाया अपना, आपको क्या लग रहा है जब हमने ये करा कि इमीडिएटली वहाँ चले गए? इट डजंट वर्क दिस वे, होल्ड रहता है 24 आवर्स। आपको लग रहा है एक ही तो दिन है, बट अगर आप इसको मैक्रो लेवल पे सोचो, इतनी सारी कंपनीज का एक दिन के लिए उनके पास पैसा है, व्हाट आर दे डूइंग विद इट? उसका इंटरेस्ट आ रहा है। देखो बेटा, अगर आप सिर्फ हमारी बात करोगे ना तो मिलेगा एक दिन, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देखो, नहीं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यही तो देखो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमें ना अब थोड़ा सा अपना विजन थोड़ा सा इन्हांस करना है। हमें इतना नहीं सोचना कि आज मेरा कहीं रुक गया इतना पैसा। इवन जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जैसे व्हाट हैपेंस, राइट, आप होल्ड करते हो, फिर क्या होता है होल्ड करके? दे यूजिंग इट समवेयर ना, सिर्फ होल्ड थोड़ी कर रहे हैं कि होल्ड कर लिया आपके पैसे रख, थोड़ी ना वो फिर ओवरनाइट, दे यूजिंग इट, उस पैसे को वो कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, कोई और बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के जब प्रॉफिट्स आते हैं देन यू गेट इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप जब आप बोल रहे हो
अगर पता, अभी आपको पता होगा जब फ़ोन पे आया था तो उनका क्या था कि पहले कैशबैक तो दे देते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है आपको 2 रुपये कैशबैक देना, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या होता था जब ये जितने भी मर्चेंट्स थे, किराना स्टोर्स थे और ये ट्रांजैक्शन होती थी ना फ़ोन पे या इनसे, सॉरी पेटीएम से, तो उनको थोड़ा सा एक मर्चेंट वो देना पड़ता था उस पर कमीशन। जब फ़ोन पे आया उसे बोला मत दो, कोई बात नहीं, दे आर एनीवेज मेकिंग मनी। उसके बाद ये आया कि पहले ऐसा होता था कि आप पेटीएम से सिर्फ पेटीएम के क्यूआर पे आप स्कैन, अब तो नहीं ऐसा होता ना, अब तो कोई भी क्यूआर हो आप किसी से भी कर सकते हो। दीज आर ऑल द इनोवेशंस दैट आर हैपनिंग। उस दुकान में कोई भी आपका लगाओ, चाहे पेटीएम का लगाओ, चाहे फ़ोनपे का लगाओ, भारत पे का लगाओ, आप गूगल पे से भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर से भी हो जाता है। नंबर से तो वी नो कि होता ही है, बट पहले क्या होता था सिर्फ पेटीएम की ऐप मैं खोलूँगी, पेटीएम का क्यूआर लगा है तो सिर्फ उसी से स्कैन करूँगी मैं, फ़ोन पे से नहीं कर सकते। लेकिन अब ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक। अभी वील वॉच सर्टेन एड्स, ठीक है, बट एज आई हैड मेंशन अर्लियर, हम इसको एज अ कंज्यूमर नहीं देखेंगे। हियर जस्ट इमेजिन यू आर इन द मार्केटिंग टीम और आप एक ये एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं और ये एक एडवर्टीजमेंट बन के आया है, ठीक है। कैसे लोगे पकड़? लाइफ कटे मजे से जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई में तो इंडिया स्पॉटिफाई सुनते जा। जो डैडी को डैडी कूल बना दे वो म्यूजिक मैजिक है। स्पॉटिफाई म्यूजिक मैजिक है। What are they trying to do in the, what are they trying to communicate in this, in the first ad? एक वेजिटेबल सेलर है, मदर है, बच्चा है। What are they trying to show there? कहीं भी मतलब सुन सकते हैं। हाँ, और नहीं, और they are trying to show in this ad कि कुछ भी चल रहा हो दुनिया में, हम वी आर एकदम लीन इन दी म्यूज़िक गिवन बाय स्पॉटिफाई, ठीक है। कि अगर मदर वहाँ पे है, वेजिटेबल वेंडर के पास है, कुछ भी हो रहा है, हम एकदम लीन है अपने म्यूज़िक में, हमें दिन दुनिया से लेना देना ही नहीं। दूसरे ऐड में क्या हो रहा है? देयर डॉटर्स फादर, they are all enjoying the music. So what is Spotify trying to communicate? Ki it is like, you know, the lines are blurred between the generations. It is for everyone, and it is also a way to bond with the generation. कि वही एक सेम गाना बच्चे भी enjoy कर रहे हैं और बड़े भी enjoy कर रहे हैं। तो Spotify क्या कहना चाहता है कि हम सबके लिए हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। ऐसे आप अगर एक मार्केटिंग टीम में स्पॉटिफाई की, आपको ऐसा आ सकता है कि अच्छा हमें हमारे ना जो 45 प्लस 50 प्लस जो कंज्यूमर बेस है ही नहीं, क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि टू यू नो इन्हांस दैट कस्टमर बेस। इस टाइप के एड्स बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और एड्स हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेंगे कि और ऐसे बहुत सारे एड्स हैं कि जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से वी कैन एनहांस आवर कस्टमर बेस, ठीक है। अच्छा, स्पॉटिफाई सुनते हैं? सब सुनते हैं? क्या चलता है स्पॉटिफाई में? कब से सुन रहे हैं स्पॉटिफाई? 2-3 साल हो गए। व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट इट? अभी का फीचर जो है कि हम एक साथ कई बंदों के साथ वही सेम गाना सुन सकते हैं। और 2-3 साल हो गए ना। आप कब से सुन रहे हैं स्पॉटिफाई? हाँ, 4 साल। आप
मैम 2-3 ईयर्स। स्पॉटिफाई कहाँ की कंपनी है? स्पॉटिफाई कहाँ की कंपनी है? ज़रा चेक करो, स्वीडन की तो नहीं है कहीं? करो करो। बट नॉर्मली अब मैं उस पे स्विच हो गया, गाना गाना भेज यूट्यूब ऑल टाइम फेवरेट। देखो 3-3, 4-4, 5-5 साल से तुम लोग सुन रहे हो, और देखो किसी कंट्री के फाउंडर को क्रेडिट भी नहीं दे रहे, तुम कह रहे यूएस। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि नाउ यू शुड हैव दिस अवेयरनेस कि जो चीज़ यूज़ कर रहे हो 4-4, 5-5 साल तक, शायद दिन में एक बार तो स्पॉटिफाई यूज़ कर ही लेते होगे, ये नहीं पता भाई कहाँ की कंपनी। 8 आवर्स बताओ मिनिमम है, तो भी नहीं पता, तो भी नहीं पता। हाँ यूएस कर दिया। हाँ तो ये सब चीज़ें ना क्यों अभी हम अगर जैसे एज आई मेंशन, अगर आईफोन की क्या ज़रूरत है, होगी कहीं की, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बट नहीं यार, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट इज सो दैट धीरे धीरे यू विल डेवलप दैट मसल इन योर ब्रेन। कल को यू डोंट वांट टू लुक लाइक फूल्स इन एन ऑफिस ना, पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। मानो एक बात बताओ, कल मैं आपको टाइम्स में आपकी जॉब लग गई फॉर इंस्टेंस, हाँ टाइम्स ग्रुप में यू वर्क विद रेडियो मिर्ची, सो आई वर्क विद टाइम्स, सो रेडियो मिर्ची वॉज ऑन द सेकेंड फ्लोर, वी यूज टू बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और रेडियो मिर्ची के ऑफिस में तो इतने गेस्ट वेस्ट आते रहते थे, पता है ना, रेडियो मिर्ची, नावेद और वो लोग सब आरजेज हैं उनके। मानो आपकी वहाँ पे टाइम्स में आपकी जॉब लग जाती है और आप वो लोग सोचते हैं कि चलो लेट्स कम अप विद समथिंग लाइक दिस, सो यू शुड नो द कॉम्पिटिटर्स ना, कौन क्या कर रहा है। यू विल बी गिवन दिस असाइनमेंट, फाइंड आउट द कॉम्पिटिटर्स, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं। हम ऐसा डिफरेंट क्या, जैसे अभी सर ने बोला आप स्विच टू गाना, क्यों स्पॉटिफाई बंद किया आपने? है ना, तो ये आप देख रहे हो, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी कि कस्टमर छोड़ के चला गया, तो बहुत फायदा थोड़ी करवा रहा था ये। प्रॉब्लम है यार आप देखो बेटा, यही आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे कि इवन इफ आप प्रीमियम कस्टमर भी नहीं हो ना, आप सर जी, हाँ ये मोड एलईडी यूज कर रहा है, ये उसमें ऐड भी नहीं आता, मतलब फ्री में यूज कर रहा है। हाँ मैं समझ गई। आप सब ये मत देखो कि जब तक आप उनको पैसे दे रहे हो तभी आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो। अगर आप पैसा नहीं भी दे रहे हो ना, आपने जब अपनी डिटेल डाली हुई है और आप जिस टाइप का म्यूज़िक सुनते थे, इट इज़ इनफ फॉर देम। आप उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, उनको जो आपको लग रहा है ना फ्री है, देयर इज़ नथिंग फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस। आपका जो डेटा जा रहा है, आपकी एज ग्रुप जा रही है, आप कौन से गाने कितने टाइम तक किस ड्यूरेशन में सुन रहे हो, कौन सा हनी सिंह का गाना सबसे ज़्यादा सुना गया है, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कंपनीज यूज़ करती हैं। आपका डेटा पॉइंट सेल होता है, आपको पता है ना ये चीज़। तो आपको जो चीज़ लग रहा है कि सिर्फ प्रीमियम लेने में ही कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, प्रीमियम तो बहुत कम लोग लेते हैं, नहीं लेते लोग। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग देना बंद कर देंगे, उनके तो डेटा आ रहा है, वो तो और महंगा बिक रहा है। आप जो उनका पेड वर्जन लेते हो, पेड मॉडल, वो तो उनके लिए उनका एक बिजनेस सेगमेंट है। मगर आपके बेसिस पे जो लोग डेटा पूरा बनाते हैं ना, ये डेटा सेल होता है। जब उन्हें आगे पिच करना होता है, आपको होता है ना कि स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव, कि ये गाना सिर्फ स्पॉटिफाई पे रिलीज़ हो रहा है, या ये पॉडकास्ट आप सिर्फ स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो। क्यों हो रहा है ऐसा? वो क्या जाके पिच करते हैं कंपनीज को, क्या बोलते हैं वो कि आप हमारे उस पर क्यों आप अपना गाना रिलीज़ करो। डेटा दिखाते हैं उन्हें कि देखो हमारे ये ऐसे 20 लाख लोग ये गाना आपका लूप पर सुन रहे हैं।
तो आप ना यू नो इट माइट साउंड वियर्ड बट वी ऑल आर ऑन डेटा पॉइंट ओनली. प्रीमियम, फ्रीमियम, एनीथिंग, वी आर डेटा फॉर देम. आपने क्या बोला, मैं 8 घंटे गाना सुन रहा हूँ. यू नो इट शोज अ लॉट अबाउट एन इंडिविजुअल. अगर हम मुझे इन्हें गाना सुन रहे हैं, ये उसमें एड्स आते हैं फिर, है ना? नहीं 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 नहीं, दूसरा वाला मैं कह रही हूँ, मतलब गाना सुन रहे हो, गाना सुन रहे हैं मतलब सॉन्ग सुन रहे हो कह रही हूँ मैं अभी. जब हम प्रीमियम नहीं लेते तो एड्स आते हैं ना, एड्स आते हैं. अब ये 8 घंटे सुन रहे हैं गाने, उसमें एड्स भी सुन रहे हैं. मानो दिन के 50 एड्स सुन रहे हैं, पूरे महीने में सुन रहे हैं. कुछ तो ध्यान जाएगा, कुछ तो खरीद ही लोगे, कुछ तो कर ही लोगे. सो देयर इज नथिंग फॉर फ्री. आप कभी मत सोचो कि अगर आपको कोई फ्री मॉडल दे रहा है ना तो आप पे कोई एहसान कर रहा है. आप ही कर रहे हो. आप देखो जैसे ही एक्स आया, ट्विटर हटा, एक्स आया, सब लोग उस पर कूद गए. थ्रेड्स आया इंस्टाग्राम का, सबने बना लिया अकाउंट अपना. जितने भी हम लोग, आम जनता नहीं, सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, बना लिया ना उन्होंने तुरंत. सब लोग एकदम बना लिया उन्होंने अपना. क्यों बनाया? दिस इज द रीजन. दिए गए ताकि उनके फॉलोअर्स पे स्विच हो सके. नॉट एवरीवन. तो यहाँ पे आपके डेटा की बात हो रही है ना. थ्रेड्स आया कि चलो ठीक है, एक्स आया, हम भी एक थ्रेड निकाल लेते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट डेटा. वी हैव जस्ट बॉइल्ड डाउन टू अ वन डेटा पॉइंट. आपको पता है ना, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे आपका डेटा, जब आपको एड्स आती है ना सिमिलर, इंस्टाग्राम पे देखते हो कभी कोई बात भी कर रही होती है किसी से, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा लेते हैं तो डोमिनोज की ऐड आना शुरू हो जाती है. कैसे आती है वो? डाटा स्टोर होता है हमारा. अगर आप कहीं सदर्न स्टेट में जाओगे तो आपके यूट्यूब के एड्स दूसरे आएंगे. लोकेशन आपकी ट्रैक होती है ना, आपको दूसरे एड्स, दूसरी भाषा में एड्स आएंगे. फ़ोन पे तो आता ही है, हमें पता है फ़ोन के तो. हाँ, यूट्यूब आप जाओ साउथ में, यूट्यूब पे जो भी एड्स आ रहे हैं दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, सेम ऐड होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी. तो ये कैसे पता चलता है, ये क्यों हो रहा है? आप दूसरी कंट्री में जाओ, वहाँ दूसरी एड आएंगी, आपकी इंडियन एड्स ही नहीं आएंगी. अब एक टाइम में भूल ही जाओगे कि यहाँ पे कौन सी एड्स आ रही थी, वहीं की एड्स ही आती हैं. ठीक है, तो चलो अब हम एक क्विक केस स्टडी करते हैं. Spotify strategic management in the Indian market. So just read this quickly. अच्छा पहले ना ज़रा इसकी फ़ोटो ले लो एक. ठीक है, चलो अब ये पढ़ा जा रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे इसको. चलो पढ़ लो उसको एक बारी. जो सब चीज़ का जुगाड़ करके लाई लो. पढ़ो केस स्टडी. अच्छा, एग्ज़ाम्स कैसे हुए आप लोगों के वैसे? ठीक है, वेरी गुड. चलो चलो पढ़ो.
Are we good? ठीक है, चलो. So let's discuss the first question. Someone please read the first question for me. How does Spotify's vision and mission influence its strategies in the Indian market? बताओ. To unlock the potential of human creativity, to reimagine the way the world listen to music. कैसे कर रहे हैं ये strategies in the market, influence कैसे कर रही हैं? बताओ. अच्छा एक बात बताओ, स्पॉटिफाई में क्या इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी हैं? इंडिविजुअल आर्टिस्ट है ना, कि मानो मैं गाना गाती हूँ, मैंने अपना चैनल वहाँ बना दिया एंड आई पुटिंग आउट माय म्यूजिक. इज पॉसिबल? हो रहा है ना. सो कैन वी से कि जो उनका विजन है, क्या है विजन? पढ़ना ज़रा. अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन. तो क्या मेरे जैसे लोगों को, आर्टिस्ट को, क्या ये इनकरेज कर रहे हैं? दे आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, राइट? क्या म्यूज़िक बनाए और आप यहाँ डालें. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ये हमें इनकरेज कर रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? मानो मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मेरा एक गाना बहुत फेमस हो गया. जैसे कौन सा एक गाना बहुत फेमस हो गया था जिसके सिंगर के बारे में कहानियाँ थी? एम्प्टीनेस. सुना है गाना? चलो आज सुनना, लिखो. एम्प्टीनेस. आप करना. ये बहुत पुराना गाना है और इस आर्टिस्ट पे इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई थी ना कि ये कोई आई थिंक IIT कानपुर का या IIT खड़गपुर का स्टूडेंट था. हाँ, गजेंद्र वर्मा. उसने ये अपने पार्टनर के लिए गाया था, फिर ये हो गया बहुत, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, कम से कम 15 साल पुरानी बात है. और वो, सुनो मेरी बात सुनो, तो ये पता ही नहीं चला था कौन सिंगर है. उसने गाना बनाया, उसके फ्रेंड ने, किसी ने बस डाल दिया ऑनलाइन, किसी को पता ही नहीं चला. तो कई बार उसका इंटरव्यू है, वो कहता था कि लोग मुझे कहते थे तू या तेरी आवाज़ ऐसे गाने की ऐसे मिलती है. क्योंकि 15 साल पहले इतना थोड़ी था, ये स्पॉटिफाई नहीं था, यूट्यूब भी इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा, किसी को पता ही नहीं, वो इंस्टाग्राम नहीं था. तो अब नाउ दैट गाय इज़ वेरी फेमस एंड नाउ उसने अपने पूरे दिखाए फोल्डर्स जहाँ वो अपना म्यूज़िक बनाता था, ये सब चीज़ें थी. नाउ वी हैव स्पॉटिफाई. अगर आज वो गाना, इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, आप सुनोगे तो आपको पता ही कौन से गाने की बात कर रहे हैं. अगर आज वो सिंगर वो गाना बनाता तो उसको क्या करना था? स्पॉटिफाई पे वो डाल देता, ठीक है, फेमस हो जाता. हाँ, दैट सॉन्ग इज़ वेरी फेमस सॉन्ग. आई थिंक 15 साल से भी पहले का है वो गाना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बहुत सारे आ गए अब तो उसके गाने. हाँ हाँ, अब आ गए ना. लेकिन उस जिस गाने से वो फेमस हुआ था, जिस गाने से वो फेमस हुआ था, उस टाइम पर बहुत सारी कहानियाँ थी कि भाई ये उस टाइम पे दैट टाइम आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग और समथिंग, उसी टाइम की बात है. अगर उसके बाद की बात मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कि ये कोई IIT खड़गपुर का स्टूडेंट है, उसका ही गॉट सम ब्रेकअप विद द गर्लफ्रेंड एंड उसे फिर ये गाना बनाया है. ये बहुत सारी कहानियाँ थी. अब वो आता है, उसके इंटरव्यूज़ आते हैं एंड ही इज़ लाइक कि नहीं भाई
मैं तो, मेरा गाना था, कई लोग मेरे पास से आके बोलते थे कि ये आपकी ऐसी आवाज़ है इस गाने की. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अभी स्पॉटिफाई के विजन और मिशन से क्या हो रहा है, दे आर एनकरेजिंग आर्टिस्ट टू कम अप एंड पुट देयर म्यूजिक ऑनलाइन. ठीक है, बहुत सारे लेबल्स आ रहे हैं, दे हैव गिवन अ प्रॉपर इकोसिस्टम एंड देयर इज दिस पर्टिकुलर टारगेट स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट, है ना. अब वो इकोसिस्टम दे दिया है लोगों को कि आओ एंड यू कैन पुट आउट योर टैलेंट. अब क्या हो रहा है उससे, अब तो AI भी है, AI से और भी ज़्यादा क्यूरेटेड प्लेलिस्ट आ रही है, आप कैसे गाना सुनना चाहते हैं और भी ज़्यादा रिफाइंड वे में आ रहे हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज रीड इट आउट फॉर मी. What additional strategies could Spotify implement to increase premium subscriber conversions in India? और क्या क्या कर सकते हैं बताओ. और हाँ सही है, बिल्कुल कर सकते हैं. ऐसा करो कि भाई आप डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब आपको एड्स नहीं मिलेंगे, वो डाउनलोड नहीं कर सकते. एक ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि प्रीमियम है कम, हाँ मैम एक लिमिट लगा दें कि इतने गाने आप बिना उसको सुन हाँ, और हाँ ठीक है, और कि कुछ एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो मिलेगा आपको, और अपने प्रीमियम अपने सब्सक्राइबर्स को इन्हांस करने के लिए. फिंगर से मिलने का मौका. हाँ, व्हाई नॉट, यस, फिंगर से मिलने का मौका. हाँ व्हाई नॉट, बिल्कुल. और हाँ, मानो आपको, आप इतना इतना करते हो, दिलजीत का कॉन्सर्ट होता है, हाँ वो भी फैन पिट का. और बताओ, बताओ. साउंड तो और अच्छा कर सकते हैं. और एक वर्चुअल मीटिंग रख सकते हैं आपके फेवरेट सिंगर के साथ. बिल्कुल. और तो ये सारे देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, केस स्टडीज ऐसे ही आती हैं, ये जो आप बोल रहे हो. और ये सब तो देखो, हम केस स्टडी क्यों पढ़ रहे हैं, कल को जब आप जाओगे, मान लो स्पॉटिफाई या गाना में आप जॉब करते हो, ऐसे ही आएंगे कि चलो भाई बताओ, हमें अपना कस्टमर बेस कम हो रहा है, स्पॉटिफाई वाले बोलते हैं कि भाई लोग गाना पे जा रहे हैं, क्या करें. हो सकता है ना. तो ये सब, और क्या कर सकते हैं, फैमिली है ग्रुप वगैरह तो हम बना ही सकते हैं, उससे फैमिली एंड ग्रुप के प्लान अलग हो सकते हैं. जैसे एप्पल म्यूज़िक पे भी, एप्पल पे भी होता है, कैसे, हाँ प्लेलिस्ट बना सकते हैं, कॉमन प्लेलिस्ट बना सकते हैं. हम ऑप्शन डाल देंगे कि मैं आपको इसी गाने का आपको 80 वर्जन सुनना है, 60 वर्जन. हाँ व्हाई नॉट. या ये भी कर सकते हैं भाई, किसी तरह का एक गेम डाल दिया उसमें कि आप जितने लोगों को, ये भी हो सकता है. और हाँ, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ गेम कर सकते हैं कि भाई आप अपने किसी कैरोके कुछ गेम कर रहे हो अपने लोगों के साथ, कुछ भी, यू कैन कम अप विद एनीथिंग, राइट. और आप अपनी प्लेलिस्ट बना के उसे पब्लिक कर सकते हैं जाके आप. राइट. या आप ये मानो कि आप स्पॉटिफाई लेते हो, आपको नेटफ्लिक्स का भी 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री. यू नेवर नो. सी अभी ही इज गिविंग मी दिस क्वेश्चन मार्क पजल कि स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, बट नेवर से नेवर यार, कुछ भी हो सकता है. किसी का भी किसी के साथ टाई अप हो सकता है, होता है ना. जैसे जियो का जब हम अकाउंट लेते हैं तो उन्होंने जियो का भी तो हमें सारा सब दे दिया था ना. थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे आप. तो यार ये जो चीज़ है इनको प्रैक्टिकली देखो आप, यही काम आएंगे आगे. बाकी थ्योरी व्योरी ओके, रियल टाइम एग्जांपल्स ऐसी ही आती हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. How important is regional content content to Spotify's success in India? And what more can the company do to enhance its offerings? बताओ. How important is regional content to Spotify's success in India? And what more can the company do to enhance its offering? Regional content पता है ना? लोकल फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं, हरियाणा के गाने चल रहे हैं, राजस्थानी चल रहे हैं. क्या हो रहा है इसमें, क्यों है रीजनल कंटेंट इम्पॉर्टेंट? अट्रैक्ट होंगे. और एग्जैक्टली. और इसके लिए हमें क्या करना होगा, और क्या, और कंपनी और क्या करे इसको करने के लिए. ये तो ठीक है, रीजनल कंटेंट होगा,
नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग हमसे, हमारे पास चाहे फ्री में आए चाहे प्रीमियम मॉडल मिले, फ़ायदा तो हमें हो रहा है भाई स्पॉटिफाई को। प्रीमियम मॉडल लेते हो तो ऑब्वियसली जो पैसे आ रहे वो तो है ही, नहीं होते तो हमारा डेटा हो, हमें पता चलेगा भाई तेलुगु गाने सुनने वाले ज़्यादा लोग हैं, हम ये डेटा इंडस्ट्री को भी देंगे कि भाई ऐसे गाने बनवाओ, इन गानों की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, बताओ क्या कर सकते हैं? लोकलाइज मार्केटिंग कैंपेन्स, लोकल हीरोज़ या लोकलाइज कोई मार्केटिंग कैंपेन हो रहा है, मान लो आंध्रा रीजन में हो रहा है कोई लोकल, वहाँ के मॉल्स में जाके आप कुछ करवा रहे हो, बाय नॉट। ठीक है, रीजनल कोलैबोरेशंस कर रहे हो, कैसे रीजनल कोलैबोरेशंस कि लोकल आर्टिस्ट हैं उनका एक्सक्लूसिव हो रहा है भाई स्पॉटिफाई पे, वो उन्हीं के गाने एक्सक्लूसिवली आप यहाँ सुनोगे। कभी कभी होता है ना कोई एक सिंगर बड़ा फेमस हो गया अचानक से, जैसे बीच में कौन सी सिंगर थी, एक लेडी फेमस हो गई थी जिसकी आवाज़ काफ़ी लता मंगेशकर जैसी थी, समझ गए ना मैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आर से कुछ नाम था अभी। मतलब अगर यार वो तो चलो ठीक है, वो थोड़ा सा सीन इधर उधर हो गया, बट व्हाट इफ शी हैड कम विद हर एल्बम और स्पॉटिफाई पे ही आ रही है वो। ठीक है, एंड और भी ज़्यादा नीश मार्केट है, ज़्यादा फोक सॉन्ग्स को हम, अभी आप देखो पहले ना, ये बहुत पहले कभी टी सीरीज़ वगैरह पे ये फोक सॉन्ग्स आते थे रीजनल अपने कैसेट पर। सबको सोनू निगम और इन सब सिंगर्स की पता ही होगी स्टोरी, दैट दे यूज्ड टू अर्लियर सिंग इन द जागरन्स एंड एवरीथिंग, एंड इनकी टी सीरीज़ पे इनके कैसेट्स आए और बिके, और ऐसे गुलशन कुमार स्टार्टेड टी सीरीज़ लाइक दिस, ही रिकॉर्डेड हिज कैसेट्स। अब पता नहीं जो रीजन, अगर किसी का कोई रूरल बैकग्राउंड है तो देखना वहाँ पे एक अलग ही कंपनीज होती हैं म्यूज़िक की, है ना, लोकल, उनका अलग ही चलता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उनके अलग ही लेबल, उनके म्यूजिक लेबल्स अलग ही चलते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन प्लीज। Evaluate Spotify's freemium model in the Indian context. Is it sustainable or should it be adjusted? बताओ। देखो सस्टेनेबल तो हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है, सस्टेनेबल होता तो छोड़ के नहीं जाते गाना पर। अब आप ये देखो, इफ़ वी कंसिडर हिम एज अ डेटा पॉइंट, एक डेटा पॉइंट ने छोड़ के दूसरे पे चले गया। अब ये इनके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, कंपनी को एकदम उनके ग्राफ में डिप दिखा होगा। अब क्या करेगी कंपनी कि भाई लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, करो कुछ। आपके जैसे लोग होंगे जो उनकी टीम में होंगे, वो बोलेंगे भाई वापस लाओ इन्हें, इन्हें एड्स भेजेंगे, इन्हें कुछ बोलेंगे चलो आ जाओ जी। हाँ आया ना कि आ जाओ प्लीज़, 1 महीने फ्री ले लो, 3 महीने के लिए फ्री ले लो, प्लीज़ आ जाओ। क्यों? तो यार अभी इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अभी एज अ कस्टमर सोचना बंद करना है। अभी आप अपने आप को धीरे धीरे वैसे बनाना शुरू करो उनको। अब आप सोचोगे कि एक तो चला गया क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है ना, बट ऐसे कितने चले गए तो फ़र्क पड़ता है। एक से नहीं हो रहा ना, एक हम तो एक जने को देख रहे हैं, कंपनी तो कितनों को हैंडल कर रही है ऐसे। तो बताओ सस्टेनेबल नहीं है, नहीं है, एडजस्ट कैसे करेंगे? कैसे चेंजेस? हाँ और बताओ। हाँ राइट कि भाई और ज़्यादा उनको, जैसे हमने जो पहले जो डिस्कस किया था वो सारे पॉइंट्स तो हैं ही। उसके अलावा कैसे और कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंट प्लान्स देके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भाई डाउनलोड इतने कर सकते हैं या इस पर इतना नहीं कर सकते डाउनलोड, रीजनल लोग। हाँ आपको साउंड क्वालिटी में नहीं एक्चुअली आपको
साउंड क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क है। अगर आप वही सॉन्ग एप्पल पे सुनोगे ज़्यादा क्लियर है। एकदम क्लियर है, स्पॉटिफाई में कंपेयर टू एप्पल म्यूज़िक इट्स नॉट दैट क्लियर। हाँ वो है, वो ठीक है, बट मैं वैसे बता रही हूँ सिर्फ पीपल हु आर रियली इनटू, डाटा यूज हटा के सॉन्ग पे ठीक है। सो नाउ यू गॉट, अच्छा आपके अभी एग्जाम्स में भी कुछ केस स्टडीज़ वगैरह आए थे? हाँ छोटे केस स्टडीज़ आए होंगे, है ना? तो यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और so for the betterment of the class, तीन क्वेश्चन तो केस स्टडी के ही थे, दो नॉर्मल थे नोट्स वगैरह। okay, so now with this we've come to the end of our class and I would like to end our class with this note: the best way to predict the future is to ठीक है, तो क्रिएट करो अपना फ्यूचर। हाँ करो, व्हाई नॉट, ठीक है, ओके।